সুখে দুঃখে আমরা একে অপরের সঙ্গে আছি। এটাই আমাদের এই 2 বছরের জার্নিতে একটাই মূল মন্ত্র। যে কোনো সমস্যা সমাধানে আমাদের মানে কি বলবো, আমাদের বেঙ্গল মেন্টর আমাদের কৌশিক স্যার আমাদের মধ্যে আছেন। তো আমরা নিজেদেরকে সেই ফ্যামিলির মধ্যে শুধু যে বন্ধুত্ব সমবয়সী হতে হবে, বন্ধুত্ব যে বাল্যকালের বন্ধু হতে হবে এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। বন্ধুত্ব আমরা যে কোনো সময়ে হতে পারি, কারণ একটা মনের আদান প্রদান, কারোর সুখে দুঃখে আমরা থাকা, এটাই হলো বন্ধুত্ব। কারণ আজকের দিনে যে বন্ধুত্ব আমরা পাই সেখানে শুধুমাত্র স্বার্থের সঙ্গে জড়িত আছে। অর্থাৎ তাকে দেখলে আমাকে দেখবে, আমাকে দেখলে আমি তাকে দেখবো, এই যে একটা মানসিকতা আমাদের মধ্যে, সেই মানসিকতা আজকে এসবিটি ফ্যামিলি আমাদেরকে শেখায় না। কারোর সুখে দুঃখে আমরা একসাথে যদি আরেকজনের পাশে থাকি তবেই একটা বড় জায়গায় যাওয়া সম্ভব। তো থ্যাংক ইউ আমাদের মেন্টর কৌশিক স্যারকে। আমরা যেন চিরদিন এইভাবে একে অপরের সাথে থাকতে পারি, আমাদের সারা বছরই যেন হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে থাকে, এটাই সবার কাছে মানে অনুরোধ। আমরা সবাই যেন সবার দুঃখে একসাথে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে পারি। ওভার টু কৌশিক স্যার। থ্যাংক ইউ কুন্তল। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যে প্রফেশনে আছি আর যে কারণে আজকের এই এখনকার আড্ডা, থ্যাঙ্কস টু দিস ইন্ডাস্ট্রি, দ্য বিজনেস অফ ফ্রেন্ডশিপ, আমি মনে করি। কারণ এই গোটা ইন্ডাস্ট্রিটাই গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের ওপর বেস করে। আমরা হয়তো একে অপরের পরিচিত ছিলাম না আগে থেকে। অনেকেই কারো না কারোর পরিচিতির মাধ্যমেই হয়তো আমরা এক জায়গায় জড়ো হই, কিন্তু আমরা সবাই মিলে যখন এক জায়গায় একসঙ্গে এসে পৌঁছই তখন আমাদের একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে আরম্ভ করে, এবং আমরা সবাই মিলে প্রত্যেকে এগিয়ে যাওয়ার একটা মাইন্ডসেট নিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি এবং চেষ্টা করি যে যাতে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এগোই। সো ওয়ান্স এগেন হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে সবাইকে। যদিও বন্ধুত্বের জন্য আলাদা করে কোনো দিন আমার ছোটবেলা থেকে আমি পালন করিনি, আজকের দিনে দেখি মোবাইলে মেসেজ দেখতে পাই, বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং দেখতে পাই, তো তখন মনে হয় হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে, চলো আমারও বলা উচিত। তো এই ইন্ডাস্ট্রি গত 15 বছরে প্রচুর 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 বন্ধুত্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে। এবং সেটা আমি যেখানে বড় হয়েছিলাম, যে পরিবেশে বড় হয়েছিলাম, যদিও আমার নিজের ছোটবেলা থেকে বেসিক্যালি আমি প্রচুর আড্ডাবাজ, এবং একদম মানে একদম ছোটবেলা থেকে ক্লাস 9-10 থেকে শুরু করেই আমাদের একটা বিশাল বড় গ্রুপ ছিল। বাট ধীরে ধীরে প্রত্যেকে যে যার কাজে আমরা এনগেজ হয়ে যাই, এবং সেখান থেকে প্রত্যেকে যে যার পেশায় ব্যস্ততা, সেখান থেকে যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এসে পৌঁছই, এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর প্রচুর মানে নিজের সার্কেলের বাইরে প্রচুর মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, বন্ধুত্ব, একই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, হই হুল্লোড় করা, ঘুরতে যাওয়া, মনের সবকিছু, যা কিছু নিয়ে সমস্যা সেই সমস্ত কিছু তাদের শেয়ারিং এবং তাদের সলিউশন করার মধ্যে দিয়ে গোটা অর্গানাইজেশনকে এগিয়ে নিয়ে চলা, এবং সেখান থেকে নিজের এলাকা পেরিয়ে নিজের সাবডিভিশন, সাবডিভিশন পেরিয়ে জেলা, জেলা পেরিয়ে রাজ্য, রাজ্য পেরিয়ে সারা দেশ, এবং দেশের বাইরেও ক্রমশ বন্ধুত্ব হতে আরম্ভ করে। এবং সবকিছুই হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে এই ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি। আজকের দিনে আমার এমনিতেই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজ্যের বন্ধুদের সঙ্গে কথা হয়, তারা হয়তো একসঙ্গে আমরা কাজ করি না, বিভিন্ন জন বিভিন্ন কোম্পানিতে হয়তো আমরা কাজ করি, বা অনেকে হয়তো আজকে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে নেই, তারা হয়তো আবার ট্র্যাডিশনাল কোনো বিজনেসে। যে কথাটা আমি অনেক সময় বলি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসে সবাই উইন করতে পারেন না, এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসে সবাই টিকে থাকতে পারেন না। এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ওঠাপড়া থাকে, এবং সেই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই কতজন, কারণ একটা বিশাল চ্যালেঞ্জিং ইন্ডাস্ট্রি, প্রচুর চ্যালেঞ্জ এই ইন্ডাস্ট্রিতে। বাট সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এত চ্যালেঞ্জ অথচ ইন্ডাস্ট্রি খুব সহজ ইন্ডাস্ট্রি। যদি আপনি যে অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখবেন, আপনি যদি মনে করেন নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রি তাহলে নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রি, আপনি যদি মনে করেন পজিটিভ ইন্ডাস্ট্রি তাহলে পজিটিভ ইন্ডাস্ট্রি, আপনি যা ভাববেন এই ইন্ডাস্ট্রি তাই। আপনি যদি মনে করেন এই ইন্ডাস্ট্রি ভালো নয়, আমি বলবো একদম ভালো নয়। আপনি যদি মনে করেন যে পৃথিবীর সেরা ইন্ডাস্ট্রি, তাহলে অবশ্যই সারা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে, লক্ষ লক্ষ ফ্যামিলির ভবিষ্যৎকে পাল্টে দিয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রি। এবং
আর পাঁচটা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির মতো এই ইন্ডাস্ট্রিতেও তারাই সফল হন যারা অর্গানাইজড ওয়েতে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলেন, যারা খুব সিরিয়াস নিজের ফিউচার নিয়ে, নিজের ফ্যামিলিকে নিয়ে, নিজের লাইফ নিয়ে, এবং যারা যে কোনো ধরনের মানে কাছাড় খাওয়া ফেলিওরকে তারা খুব গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করেন, এবং সেই ফেলিওর তাকে নতুন করে আবার এনার্জি দেয়। কারণ একটাই ব্যাপার, পৃথিবীর যে কোনো পেশাতেই আপনি যান না কেন, সেই পেশাতেই আপনার ফেলিওর হওয়ার চান্স রয়েছে, অবশ্যই রয়েছে। বাট এই ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট, ওয়ান্স অ্যাগেন হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে টু ইউ অল। ওয়েলকাম রাজ স্যার, ওয়েলকাম সোমনাথ স্যার, ওয়েলকাম শুভেন্দু স্যার, ওয়েলকাম কৃষ্ণেন্দু স্যার, ওয়েলকাম সুজিত স্যার, তারক স্যার, সুনিতা ম্যাম, যতজনের নাম আমি সামনে দেখতে পাচ্ছি, পরে এক এক করে, তার আগে অনেকের সঙ্গেই নক করে নজরুল স্যার, সবাইকে ওয়ান্স অ্যাগেন। এই যে আমাদের মানে আমি সোমনাথের কথাই যদি ধরি, সোমনাথের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় থ্রু দিস ইন্ডাস্ট্রি, আগে থেকে কোনো আলাপ ছিল না, সেখান থেকে আজকে দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক, দাদা ভাইয়ের মতো সম্পর্ক আমি বলবো না, আমি বলবো দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক। ঠিক আছে, এটাই ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে বড় পাওনা। আরো এক এক করে বায়োসেসের এই 2 বছরের জার্নিতে আরো আরো প্রচুর প্রচুর, এবং সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট বায়োসেস বিজনেসে এসে আমার নিজের যেটা সব থেকে বড় পাওনা, সেটা হচ্ছে যে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ট্রান্সপারেন্সি এইখানে যেটা তৈরি হচ্ছে, যে অর্গানাইজেশন তৈরি হচ্ছে, এর আগে আমি কিন্তু এত সুন্দর অর্গানাইজেশন তৈরি করতে পারিনি। তখন হয়তো আমার অর্গানাইজেশনের ভলিউম অনেক বড় ছিল, হাজার হাজার মানুষ, বাট এখনো পর্যন্ত এই অর্গানাইজেশন, কারণ এবারের স্ট্র্যাটেজি অন্যরকম, এবারে আসলে যেহেতু লম্বা কাজ করার মাইন্ডসেট নিয়ে এই জার্নিটা শুরু হয়েছে, তো আমি সবাইকেই যেটা বলি যে সারা জীবনের মতো যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমাদের সঙ্গে বায়োসেসের জার্নি স্টার্ট করুন। আর যদি মনে হয় ফটাফট ফটাফট কোনো রোজগারের ইচ্ছা রয়েছে, তাহলে হাজার একটা কোম্পানি রয়েছে, হাজার একটা কোম্পানি। এবং যে কথাটা বারবার বলি, যে ভারত শুধু নয়, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতে 15 বছর মার্কেটে প্রোডাক্ট টেস্টেড হওয়ার পর তারপরে ডাইরেক্ট সেলিং এর থ্রুতে তাকে আবার নতুন করে মার্কেটিং করার স্ট্র্যাটেজি আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড কোনো কোম্পানি নেই। আপনারা প্রতিদিনই কদিন ছাড়া এই মার্কেটে যদি একটু সার্চ করেন, আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টার দৌলতে সবারই প্রচুর কানেকশন, এবং সেখান থেকে প্রতিদিনই আমার মনে হয় আমার কাছেও যেরকম আসে, আপনাদের কাছেও প্রতিদিন কেউ না কেউ কোনো না কোনো কোম্পানি হয়তো পাঠায়, যদিও আমার কাছে খুব বেশি আজকের দিনে আসে না। তার কারণ হচ্ছে যে আমার চেনা পরিচিত সার্কেল তারা জানেন যে একে পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ আমি কোনো কিছু শুরু করার পর আমি বোল্ডলি অ্যানাউন্স করি যে আমি কি করছি। মানে আমি ওই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কাউকে পাওয়ার জন্য নয়, যদি কাউকে পাই তো ভেরি গুড। আমি বেসিক্যালি আমি অ্যানাউন্স করে দিই একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে যে আমাকে যাতে আর কেউ ডিস্টার্ব না করে। কারণ যে অর্গানাইজেশন বিল্ড আমি করতে যাচ্ছি, সেই অর্গানাইজেশনের পেছনে আমার যতটা সময় আমি ধার্য করেছি ইন্ডাস্ট্রিকে দেওয়ার জন্য, সেই পুরো সময়টার 100% যেন আমি আমার অর্গানাইজেশনকে দিতে পারি। সেই সময়টা কারোর সঙ্গে গল্প করে, অন্য কোনো প্ল্যান দেখে, কোনো কিছু, হ্যাঁ, তারপরেও অর্গানাইজেশনকে ট্রেন করার জন্য, শেখার জন্য, জানার জন্য নেটে সার্চ করে, সেখান থেকে তো মাঝে মধ্যেই আমরা, যেমন গত কয়েকদিন আমাদের টপ লিডারদের মধ্যে এরকম মার্কেটে যা কিছু রিসেন্ট আপডেট হচ্ছে, সেই সমস্ত অনেক কিছু নিয়ে, কারণ কোথায় কি আপডেট হচ্ছে, আমাদের নতুন কোনো কম্পিটিটর কেউ এলো কিনা মার্কেটে, বা আরো কি কি আসতে যাচ্ছে, এই সমস্ত কিছু, এবং কোম্পানিকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য যে মার্কেট কি আপডেট হচ্ছে, সব সময় তো কোম্পানিরও নজরে থাকে না। তো সেই সমস্ত কিছুর জন্যই সেটা স্টাডি করতে হয়, বাট কারোর সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়ার মতো সময় নেই। এবং আজকের দিনে বন্ধু বলতে, সত্যি কথা বলতে, আপনারাই সবাই, ফ্যামিলি বলতেও আপনারাই সবাই। সো ওয়ান্স অ্যাগেন হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে। সুজিত স্যার দারুণ লিখেছেন কিছু একটা, হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে টু অল মাই beloved mentors and our SVT family fighter SVT. থ্যাংক ইউ সুজিত স্যার, তারক স্যার লিখেছেন, থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার কাছে প্রতিদিন ফ্রেন্ডশিপ ডে,
কারণ আমি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে, কারণ দিস ইজ দ্য প্রফেশন অফ ফ্রেন্ডস। পুরনো বন্ধু আপনি অনেকে খুব লাকি হলে তারা পান, সেখান থেকে একসঙ্গে গড়ে তোলেন, বাট আমার ক্ষেত্রে সেই সৌভাগ্য হয়নি। না আমার কোনো আত্মীয় আমাকে কখনো সাথ দিয়েছেন, আমার কোনো পুরনো বন্ধু আমাকে সাথ দিয়েছেন, আপনাদের মতো বন্ধুরা সাথ দিয়েছেন। তার জন্যই আমি যেটা বলি যে এই ফ্যামিলি আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু, আমার সমস্ত কিছু। এবং এই ফ্যামিলির সঙ্গেই আমি সময় কাটাতে সব থেকে বেশি পছন্দ করি। এর বাইরে কথা বলার মতো আমার একটুও সময় থাকে না। তো প্লিজ, আজকে আমাদের যিনি প্রেজেন্টেশন আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন তিনি অলরেডি এসে পৌঁছে গেছেন। আমি তাকে ডাকার আগে একটু জেনে নিই যে তিনি অলরেডি ফ্রি আছেন কিনা, কারণ উনিও আজকে ফিল্ডে ছিলেন। সোমনাথ স্যার, আপনি কি ফ্রি? আপনাকে রেডি আছেন? जी सर, आदेश सर, आदेश। ওকে 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 ওকে। तो डाकार आगे आने से पहले सोमनाथ जी के लिए আমার আমার মনে হয় সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগে বৃহস্পতি রবি এই দুদিন আপনাদের সঙ্গে যখন কথা হয়, আড্ডা হয়। এখনো পর্যন্ত আমি সুযোগ করে উঠতে পারছি না, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে আবার আমাদের আগের মতো করে হইহুল্লোড় গুলো চালু হয়ে যাবে। তো অলরেডি অনেকেরই তো চালু রয়েছে, আপনারা সবাই ফিল্ডে আছেন। আমি এক জায়গায় থেকে সেখান থেকে যাতে সবাই সিরিয়াসলি বিল্ড করতে পারেন তার জন্য নেক্সট প্ল্যানিং গুলো চলছে আমার। সো প্লিজ ওয়েলকাম দ্য গ্রেট স্পিকার, গ্রেট মোটিভেটর, মাইন্ড ব্লোয়িং পারফরমেন্স যার কাছ থেকে আমরা সব সময় পাই, একদম ভেতর থেকে যিনি জ্বালিয়ে দেন, যিনি আমাদের হিলিয়ে দেন, নাড়িয়ে দেন, এবং আমি তো মনে করি আগ্নেয়গিরি তার ভেতরে একদম মানে জ্বলছে সারাক্ষণ। তো ওয়ান্স অ্যাগেন আমি কি তাকে ডাকতে পারি? আরেকবার জিজ্ঞেস করবো আপনাদের। Please welcome one and only Mr. Somnath Bhagat sir. Please sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you very much, sir. It's an honor to talk with you and with our great family. तो दोस्तों नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और आप सभी को स्वागत इस प्यार भरे शाम में। और आज का दिन इतना खास है ना कि ये 1 अगस्त है, और ये आज सभी लोग सोशल मीडिया में बहुत शेयर कर रहे हैं। कितनी दोस्ती, कितने अंदर से उन लोगों को आज प्यार करते हैं, सभी को आप शेयर कर रहे हो, सभी को आज प्यार दे रहे हो। बस एक बार अपने आप से पूछ लेना, ये सही है ना? आप सच्चाई के साथ उनसे प्यार करते हो कि नहीं? खुद से प्यार करो। सबसे अच्छा बड़ा फ्रेंडशिप ये होता है कि आप खुद से प्यार करो, क्योंकि यही प्यार अगर खुद से हो जाए तो दुनिया आप बदल सकते हो। ये मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया की जितने लोग आज सफल है, ये उनकी कहावत है कि सफल लोग वही करते हैं जो नकल करते हैं, और नकल मतलब जेरोक्स करना है, आज पेस्ट करना है। तो नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ भगत, और मैं आज आपके साथ आज के साथ मैं आज मैं आप लोगों के साथ जो समय बिताने वाला हूं, आधा घंटा से 40 मिनट, इससे ज्यादा समय लूंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट जरूरी है कि आज ये जो खास दिन मेरे जीवन में मैं आपके साथ बिताने वाला हूं, तो आने वाला 45 से 50 मिनट या 1 घंटा मान के चलो, आप मुझे दोगे, और खुद के लिए दोगे, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन क्या कहें, आप इंसान हो। भगवान ने अगर सबसे खूबसूरत किया है तो वो इंसान को किया है, और इस खूबसूरत चीज को आप खुद को प्यार करो। और आने वाले 45-50 मिनट या 1 घंटा आप जितना टाइम मुझे दोगे, मैं उतना टाइम आपके साथ रह सकता हूं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं मेरे लाइफ, मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करना है आपको, और अपने स्क्रीन को कभी हाथ नहीं डालना है। यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर सा शब्द लिखा हुआ है कि सर प्लीज
मोबाइल को, अगर आपके पास कोई मोबाइल रखा हुआ है तो उसको साइलेंस कर दो, अगर आपके बगल में कोई है तो उसे साइलेंस कर दो, अगर आपका मोबाइल हाथों में है तो उसे रख दो कहीं टेबल पर, अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो हेडफोन लगा के आधा घंटा मेरे साथ दे दो। मैं आपको जिंदगी का सबसे बेहतर, सबसे सुंदर दिन आज बिताने वाला हूं, आज का 1 घंटा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितना घंटा हिलाया है उसमें मैंने देखा है कि मैं सबसे फालतू इंसान था इस आज से करीबन करीबन 1.5 से 2 साल पहले। लेकिन मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, जो जिसके विषय में मैं आने वाले समय पे आपके साथ कुछ बातचीत करने वाला हूं, मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं, तो वो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। क्यों? तो ये जो मौका होता है ना, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि पहले नमन करता हूं उनको, जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, कि आज मुझे ये खास दिन मेरे लिए रखे थे। और इनके लिए भी रखता हूं जिन्होंने मुझे इस सुंदर से, मतलब भूमि में, मातृभूमि मतलब भारतवर्ष में मुझे जन्म दिया और उन्होंने सिद्धांत लिया। मेरे माता पिता और मैं सबके माता पिता के लिए सबको एक बार तहे दिल से नमन करने के लिए कहूं, क्योंकि वो अगर ना रहते तो हम आप आज मिलते नहीं। और ये सबसे अच्छा दिन है, इसीलिए मैं कहता हूं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्योंकि अगर मेरे माता पिता अगर वो फ्रेंडशिप नहीं लाते तो मेरे दुनिया में आज सृष्टि नहीं होता, और आप और मैं अगर आज नहीं मिले होते, क्योंकि आज का दिन सबसे खास है, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ अलग सोचा है आपके लिए, और मुझे वो मौका मिला है आपको शेयर करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो जोरदार जोरदार तालियों के साथ एक बार इस चेहरे को देखने के लिए, नूर हो जाए सर, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। मेरे गुरु मेरे बिलवेड फ्रेंड, मेरे फाइनेंशियली जो गाइड करते हैं, आज जोरदार तालियों के साथ, मतलब मैं उनका नाम लेता हूं तो मेरे शरीर में वो खून दौड़ने लगता है। वन एंड ओनली माय बिलवेड गुरु एंड आवर गुरु एंड बंगाल टाइगर मिस्टर कौशिक मल्ल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी such an opportunity, such a beloved opportunity. थैंक यू। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सर। ऐसा दिन आया है हमारे लिए कि मैं उनके बुलावे पे मैं आज आ रहा हूं। ऐसा मौका सबको मिलना चाहिए कि आपको कोई बुलाए, जो आज इस इंडस्ट्री में आपको लाए। सो थैंक यू। तो मेरा परिचय है सर, मेरा नाम सोमनाथ भगत है। आज से करीबन 2 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब यही समझता हूं कि अगर नेटवर्क नहीं होता तो ये मोबाइल मेरे हाथों पे नहीं होता, और ये अगर मोबाइल मेरे हाथों पे नहीं होता तो ये जबान का वैल्यू नहीं होता, और ये जबान अगर सही नहीं होता तो आज मुझे आप सुन नहीं पाते, और अगर आप सुन रहे हो तो आज जिंदगी बदल दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे गुरु ये कहते हैं कि कर्म करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए माय डियर फ्रेंड्स। सो आने वाला समय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे जिंदगी बदल गया है, और मैं जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को बदला हूं वही तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ कॉपी करो दोस्त। आज हर दोस्त को मेरी एक ही गुजारिश है कि आने वाले आधे घंटा 40 मिनट आप मुझे सिर्फ भरोसा करके, अपने दिमाग को पूरा खाली करके मेरे साथ डाल दो, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति लोग जो कहते हैं कि इनका नाम है एलन मस्क। ये कह रहे हैं कि आई हेट व्हेन पीपल कंफ्यूज एडुकेशन विथ इंटेलिजेंस। मैं ये कहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि जब लोग खुद को भरोसा नहीं करते हैं और विचार करते हैं किसके साथ, एडुकेशन एंड इंटेलिजेंस। मतलब आपके पैकेट में कितना सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू नहीं है, अगर सर्टिफिकेट के साथ अगर आपका इंटेलिजेंस है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इंटेलिजेंस है। आप एक गरीब घर में हो लेकिन आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास दिमाग है। यू कैन हैव एन बैचलर डिग्री एंड स्टिल बी एन इडियट। मतलब आज ये तो सही में यार, ये गलत नहीं कहते थे, इन्होंने आज नहीं कहा। इसकी सबसे बड़ी भरपाई आज हम अगर कोई पिता मुझे सुन रहा है, कोई माता मुझे सुन रहा है, कोई फैमिली मेंबर मुझे सुन रहा है, एज अ गार्जियन अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो हिला देने वाली ये न्यूज है कि आज पूरे विश्व में ये एक
मतलब प्रख्यात एक न्यूज़पेपर है जिसको कहा जाता है सहारा न्यूज। 21 जुलाई को ये न्यूज़पेपर निकला था और उसमें लिखा गया है कि मुर्दा घर में डोम के लिए आवेदन करने वालों में इंजीनियर भी। ये बहुत दर्दनाक एक न्यूज था। मैं सोचने लगा इस न्यूज को देखने के बाद, पढ़ो दोस्त पढ़ो, आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे पे दिल से पढ़ो कि मेरा बच्चा अभी आज 8 साल का है और मैं उसको बोल रहा हूं बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, बोलेगा इंजीनियर बनेगा। बोला यार डोम मत बनना कम से कम। कैसे मैं उसको पढ़ाऊं, कैसे मैं लाख रुपए आज रोजगार भी करूं, तो कहां से बोलूं कि मेरा बेटा इंजीनियर होके इंजीनियर बनेगा। हजारों हजारों आज ग्रेजुएशन के बंदे, सोचने वाली बात है सर, सोचने वाली बात है, दिल दहलाने वाली बात है, आपके अंदर के तोड़ने वाली बात है। ये न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं है, आने वाले 5 साल की सबसे बड़ी चेंजेस है। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि समय बदल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना सोच बदलो। अगर समय ने आपको बदला ना तो सोच भी काम नहीं आएगा, सिर्फ दरवाजे पे आप गिरे रहोगे और लोग आपके पास नहीं होंगे। तो आज मौका है दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास काबिलियत की कभी अभाव है। मैं ये कहता हूं अगर ये न्यूज़पेपर ये कह रहा है तो हम और आपको सबको मिलना है एक साथ, पूरे भारतवर्ष को एक साथ मिल जाना है। क्योंकि इससे पहले लोग बोलते थे मुझे एडवोकेट बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, एम्प्लॉय बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ट्रेन में झूलना है, और ट्रेन भी नहीं चल रहा है। यार आने वाला समय पे हम करें क्या अपने लाइफ सिक्योरिटी के लिए? अगर है भी कोई तो आज उनका लाइफ सिक्योर्ड है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसी समय हमारे कुछ दोस्त आज घर बैठे कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना दिमाग हिलाते। देखते हो वो बंदा क्या करता है, कुछ लोगों को कुछ बोलता है, छत पे खड़ा होकर किसी को डायलॉग दे रहा है। हाँ दोस्तों, जितने लोग ये टेबल पे बैठे थे ना उनकी हड्डी मसली इसी तरह आज दिखाई दे रहा है। और घर में पूछो कैसे हो, एक तो करते थे नौकरी और कहते हैं कि आज भी जॉब नहीं है। सो हाउ वी आर रियली डाइड? हम क्या मर चुके हैं? नहीं, हमारा शरीर तो है, हमारा सोच मर चुका है। और क्योंकि हमारे बगल में अगर कोई अच्छा भी कुछ बोल रहा है तो हमारा सोच मर चुका है सर। तो हमारा स्पिरिट को हमें बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 साल सोचना नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको ये बताऊं कि ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला ना सबसे बड़ा गलत है कि विश्व के जो ब्रिटिशर्स थे ना हमारे अंदर से रूल करके जब इंडिया छोड़ के गए थे, कुछ टेक्निक छोड़ के गए थे कि 8 घंटा मेरे लिए काम करो, हफ्ते में 5 दिन करो, 40 घंटा करो, 40 साल करो। और ये 40-40 गेम हमारे माइंड पे जब बच्चा जन्म लेता है तो माता बोलता है, पिता बोलता है, गार्जियन बोलता है, और दोस्त भी बोलते हैं अच्छा नौकरी करना है। आज नौकरी नहीं है, आज इंडस्ट्री नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा मौका नहीं है कि कोई हमारा बच्चा भी और हमारा दोस्त भी, हमारा बेटा भी अगर कहीं जाए तो हम बोलते हैं कि उसको मिलेगा। किसको मिलता है? जो जीनियस होता है। मैं तो जीनियस नहीं था, क्या आप जीनियस हो सर? सर ये डिपेंडेंसी होती है और इस प्लान को हटा होता है। आज भी लोग सेविंग्स नहीं कर पाते थे। लोग हमें क्या था, 1000 रुपए रेगुलर रखो, 1000 रुपए मंथली रखो, 1000 रुपए हफ्ते में रखो। लेकिन अभी तक हुआ क्या? आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके मुंह में दांत नहीं है, और आपके सर पे बाल नहीं है। ये मेरे एक मौसी के लड़के ने कहा, सर में माल नहीं, जेब में माल नहीं। कब होगा? जब सोच कमाल के होंगे ना तो ये पैसा जेब में होता है। जब सोच कमाल का होगा, सोच मतलब आपको हर महीने 10,000 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है। जो आप कर रहे हो उससे परिवार चल रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा है। आपको एक्स्ट्रा 10 से 20,000 रुपए कमाना पड़ेगा, और आने वाले समय पे ये आपका सेविंग्स होगा क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा इनकम है। आप 2 से 4 घंटा यहां दिमाग लड़ाओ, जिससे आपकी खर्चे जो होते हैं ना घर पे, वो खर्चा आज रोजगार में तब्दील करो। इसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप 10,000 कमाते हो तो आने वाले 30 साल में आप 36 लाख रुपए सेविंग्स करोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे। तो आने वाले 20,000 रुपए अगर महीने की आप सेविंग्स करोगे तो इसके लिए आपको 72,000 रुपए, आने वाले 72 लाख रुपए आपको सेविंग्स होगा सर। ये आपको एक तरीका भी सोचना पड़ेगा। क्यों सेविंग्स करोगे? क्योंकि आपके पास कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं। आप देखते तो हो लेकिन सोते हुए तकिए के पास, और अपनी बीवी को बोलो क्या ये मेरा पूरा होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं कहते हो? अब होगा, क्योंकि अब हमारे पास मौके हैं।
आज पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका यंग यूथ का एवरेज एज है 29, 25 एवरेज एज है। सो यंग यूथ ऑफ द वर्ल्ड, हम उस देश के वासी हैं जो हमारे पास सबसे यंग यूथ हमारा एसेट है। जहां पे जॉब नहीं, हम जॉब गिवर से लेकर हम जॉब सीकर से लेकर हम जॉब गिवर बन सकते हैं। हम किसी को आज काम दे सकते हैं, ऐसा अगर सोचे तो। इसके लिए ना हमें सपना, जो सपना होता है वो पहले अगर खुरेद खुरेद कर देखना पड़ता है। कैसे देखें हम? देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या मेरे सपने में खुद का एक गाड़ी होना चाहिए, मेरा बच्चा सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, मेरे फैमिली मेंबर में मेरे गार्जियन जो मेरे माता पिता मैंने मुझे जन्म दिए, अगर उनका कोई भी ट्रीटमेंट हो तो वो एक बेस्ट इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल, ऐसा सेविंग्स हो। अगर आपके पास कहीं उधारी है, आपका फ्लैट अगर उधारी पे चल रहा है, एक्स्ट्रा कमाओ, वहां से हम इसको गोल सेट करें। आपका अगर कहीं पे लोन चल रहा है, आपका 2 व्हीलर लोन है, आपका 4 व्हीलर लोन है, तो आप कहां से चुकाओगे? क्योंकि आपका जॉब ही आज सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अर्न करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं, जिसके लिए हम लोग जुट हुए हैं। मैं भी कमाता था 15 से 20 हजार, आज भी कमाता हूं उससे डबल। क्यों? कारण यही है कि मेरा सोच बदला था, और इस सोच को बदलने वाले मेरे गुरु मिस्टर कौशिक मलिक जी थे। मुझे रास्ते बताए थे और मैंने उनके बातों को भरोसा किया, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था भरोसा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का जो बिलीफ था वो मेरे पास तो था, लेकिन वो बिलीफ में कहां पे काम लगाऊं इसका जगह नहीं मिल रहा था। जिसने मुझे दिखाया उनका नाम कौशिक जी है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक गाइड किया कि अगर घर पे अगर 5 लोग हैं, उनका फैमिली अगर 1960 पे अगर सिर्फ 100 रुपए पे चलता था, तो 20 साल में वही 5 फैमिली का मेंबर का खर्चा हो गया 1000 रुपए। एक जीरो बढ़ा, 100 से जीरो, फिर 20 साल में बढ़ा जीरो, 10,000, फिर 20 साल मतलब 2020 में जिनका परिवार का रोजगार 1 लाख था, मुझे यहां पता नहीं किसका बैंक का सेविंग आज 1 लाख रुपए का है। सर मेरा तो नहीं था, मैं अब झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं निकम्मा था। पैसा कमाता था, खर्चा कर देता था, मेरे शौक बड़े थे, मेरे सपने बड़े थे, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा था, मुझे और पैसा चाहिए था। और पैसे के लिए मैं गलत रास्ते नहीं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम को इन्वेस्ट किया। आज मैं अपने घर पे अपने छत पे हूं, और पूरे बंगाल से, पूरे बहुत सारे अदर स्टेट से भी मुझे लोग आज सुन रहे हैं। इनको सबसे नमन, क्योंकि मुझे ये मौका मिला और मुझे भगवान ने ये मौका दिया, और मैंने इस मौके को छीना। मुझे मिला नहीं, मैंने छीना, क्योंकि मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरे परिवार को मैं प्यार करता हूं। क्योंकि आने वाले 20 साल मतलब 2040 जब होगा ना, तो उनका कह रहा है कि ये 1 लाख में अगर जीरो बढ़ा तो 10 लाख होगा। सो दोस्तों, मैं इस ट्रैक में नहीं था। क्या आप हो? अगर नहीं हो तो सोचो, तो फिर आगे सोचते हैं। एक तो ये गया पैसा कमाना, और आज के डेट में हमारी शौक देखो, घर में पैसा नहीं है लेकिन खाने के वांदे हैं। खाना क्या है? वही बर्गर, वही चीज, वही फास्ट फूड। क्या मिल रहा है दोस्त? एक तरफ तो नौकरी नहीं है, एक तरफ तो सबकी जॉब इधर नहीं है, और एक तरफ हमारी महामारी देखो। क्योंकि मैं जहां रहता हूं चंदन नगर, आज यहाँ पे फ्रेंडशिप डे में मतलब चंदन नगर स्टैंड पूरा भरा हुआ है, और यहाँ लड़के लड़की को देखो मजा है। काहे का मजा है? फास्ट फूड सेंटर में। इसकी वजह से भी देखो एक बड़ा सा मार्केट बना है, और हमारा हालत भी ऐसा बना है सर। ये हमारा हैबिट हो चुका है खाने में। अब ये खाने में हमारा हैबिट बन चुका है, तो इसके वजह से हमारे घर पे क्या हो चुका है देखिए, बहुत सोचने वाली बात है। एक तो पैसा कमाना है, एक तो रास्ते भी बनाने हैं, और इसमें हमारा हैबिट भी बदल चुका है। हम खाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईट फूड एज अ मेडिसिन, अदरवाइज यू विल गेट मेडिसिन एज फूड। अगर आपका खाना खाने के बाद अगर दवा खाना पड़ेगा, तो आने वाले समय पे सिर्फ आप दवा ही खाओगे, आपका खाना हो जाएगा। क्योंकि आपका जो पैसा है ना, वो कोई और लूट के लेके जाएगा। अगर एंजॉय करना है खुद का पैसा, तो हेल्थ को देखना है। तो इस हेल्थ के लिए सभी को वेलकम। और ये हेल्थ की वजह से हमें क्या मिला है? पूरे हेल्थ में आज पूरे दुनिया, पूरे विश्व में यही 2 कारण हैं जिसके वजह से आज ये कोविड है, जिसके वजह से ये लॉकडाउन है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में है। किस इंडस्ट्री में? इलनेस नहीं, हॉस्पिटल बंद पड़ रहे हैं, नर्सिंग होम बंद हो जा रहे हैं, ऐसे जगह भी हैं जहां पे आपको चिकित्सा भी सही ढंग से नहीं मिलेगा।
और आज के डेट में लोगों ने खुद का परिवर्तन किया कि खुद को खुद सही करेंगे, और इसको कहते हैं वेलनेस। अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, देखिए आपके पास आज है कैंसर 0.595 मिलियन, ये आज कैंसर की स्थिति है हमारे भारतवर्ष में। स्ट्रोक की स्थिति है, देखिए हार्ट अटैक, फिर देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो हमारे हर घर में है। मैं किसी से भी पूछता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर आपके पास लाख रुपए भी है और आप 50 घर घूम लो, किसी भी घर पे, किसी भी के भी घर पे आप जाके पूछो कि भाई आपके घर में कोई रोग नहीं है, ये लाख रुपए मैं आपको दूंगा, और जवाब आपको यही आएगा कि नहीं। एक है ना बंदा, या तो मेरा पापा है, नहीं तो मैं हूं, नहीं तो मैं खुद हूं, नहीं तो मेरी वाइफ है। यार जब से शादी की है तब से यार दवा 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 दारू करने में हमें तो यार दिमागी हालत है। क्यों? कारण यही है कि हमारा खाना पीना, हम ऐसा लाइफस्टाइल खाने में दिमाग देते हैं। सो फ्रेंड्स, यही जो डिजीज है, आने वाली सेंचुरी आपका बिजनेस होगा। यही जो डिजीज है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन आप इसका रास्ता भी निकाल पाओगे। कारण क्या है? कारण ये जो कह रहे हैं सर पॉल्सन पिल्जर, इनका नाम बहुत सारे लोगों ने आप सुना होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट है, 2 यूएस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे। ये कह रहे हैं कि आने वाले सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब खुद को सही कर पाओगे और लोग आपसे पूछेंगे कैसे ठीक होंगे हमारे घर में। और यही जो नॉलेज है ना, आप किस जगह पे इन्वेस्ट करोगे, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका फ्यूचर क्या है हमें पता करना है कि इस इंडस्ट्री में हम आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों, इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर है आने वाले 5 साल 2025 के अंदर इसका ग्रोथ परसेंटेज है 900%। ये कौन कह रहा है? केपीएमजी। ये केपीएमजी कौन है? ये केपीएमजी है वर्ल्ड का टॉप 5 ऑडिटिंग कंपनी है सर, जिसका रिपोर्ट कहता है, डाटा कहता है। आप सोचो आपके पास क्या डाटा है कि आने वाले 5 साल में आप अपने फैमिली की ग्रोथ 900% कर सकते हो। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अगर 19 साल किसी कंपनी में दिए होगे, कहीं भी काम किए होगे, यहाँ पे 9 महीना दो, आपको बच्चा नहीं, आपका वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में जो बीबी है ना, बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो माता पिता है ना, सबसे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री कह रहा है। अराउंड द वर्ल्ड इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो ग्रोथ आने वाला है वो है इंडिया। क्योंकि देखिए आपको इंडिया नीचे दिखाई देगा, ये तब की रिपोर्ट है जब कोविड आ रहा था। अब की रिपोर्ट है, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ में है। एक 22 साल का उम्र का लड़का दिल्ली का को हुंडई वर्ना 15 लाख का गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्ट सेलिंग चूज किया। एक दिल्ली की लड़की जिसने अपने पापा को दुकान खरीद कर दिया करीबन 26 लाख की, उसने डायरेक्ट सेलिंग चूज किया। यहाँ पे एक आदमी है, बर्दवान के रहने वाले हैं, जो कभी अब किसी दुकान में सुबह काम करते हैं और अपने दुकान में शाम को काम करते हैं, वो आज अपना खुद की बाइक लिए हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे आत्मनिर्भर हमारे फैमिली में आज हैं, और ये बहुत बहुत लाखों एग्जाम्पल हैं जो आज इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, और आने वाले 5 साल में सबसे ज्यादा होने वाला है। अब आप खुद का दिमाग लड़ाओ कि आपको कोई ये बता रहा है कि यहां होगा, उसमें आप अपना दिमाग डालोगे, या खुद का दिमाग डालोगे कि आने वाले 5 साल तक चलो भाई तुम करो, हम देखते हैं। अगर करना है तो वो करेगा, जो करेगा ना तो वो करेगा, आप देखते रह जाओगे। अब आप सोचो कि आप देखने में होगे ना दिखाने में होगे, आप देखने में आओगे या दिखाने में आओगे, सोच आपके अंदर होगी। क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाले 2025 साल में होने वाला है, क्योंकि ये 65,000 2025 तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है, वहां पे लिखता है आपदा में, मतलब ये जो विपद आया ना कोविड-19, डायरेक्ट सेलिंग, ये मनोज शर्मा जी हैं सर। ये ऐसा न्यूज़पेपर है, ये हमारी बात नहीं है, ये हर एक न्यूज़पेपर में आज के डेट में इस भयंकर परिस्थिति में अगर किसी का सहारा बना है, क्योंकि पूरे दुनिया में इस टाइम अगर कुछ बंद हुआ है तो वो ट्रेन, अगर कुछ बंद हुआ है वो है व्यवसाय, अगर कुछ बंद हुआ है तो जॉब, अगर कुछ नहीं चला है तो वो है गाड़ियां रास्ते में, अगर चला है तो एक ही कंपनी जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि इसका कारण एक ही है कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर आज सोशल मीडिया के माध्यम से हैं,
और इस मीडिया को अगर हम आज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर इसका यूजर कैसे किया जाए, आप 2 घंटे इसी में डालते हो, आप अपना जन्मदिन, आपका स्टेटस, आज फ्रेंडशिप डे, देखो हर जगह लिखा हुआ है। अगर ये समय आप निकाल के एक्स्ट्रा जो टाइम है, अगर किसी दोस्त को आप फोन करके बोलते हो भाई जबरदस्त एक मौका मिला है और हम इसमें जरूरी है, गारंटी है अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ मुझे 2 से 3 साल देना है, ऐसा कोई इंडस्ट्री तुझे पता है? बोलेगा नहीं, मुझे नहीं पता कि लाख रुपए कमाने के लिए 2 से 3 साल में हो जाता है। अब 2 से 3 साल में लाख रुपए कमाने वाला इंडस्ट्री एक ही नाम है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और जो यहां समय देते हो, सिर्फ यहां से 2-3 घंटा आप समय निकाल लो। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है बायोशैस और हमारे एमडी का नाम है शिवक्थॉन गुरु, द वर्ल्ड ओनली वन कंपनी बायोशैस। नाम है मिस्टर अर्जुन खन्ना सर। सर ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे बायोशैस के फाउंडर हैं और आने वाले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते के अंदर हम इनसे मिलने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हमें मौका मिला है इनके साथ इस लॉकडाउन में ऐसा कुछ करके इनसे मिल पाए। तो ये हमारे लिए मौका है। और हम जिस कंपनी को आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनका नाम है बायोशैस और जो इसको लेकर काम करती है, इसका नाम है शिवक्थॉन। इस शिवक्थॉन को संजीवनी बूटी कहा जाता है और ये संजीवनी बूटी मृत कहा जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मरेंगे। ये लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी वो जो पहाड़ लेके आए थे, वहीं पे जो फल मिला था, इसी फल को कहा जाता है शिवक्थॉन। इसको वहां के लोकल लोग कहते हैं सस्ता लूलू। ये गोल्डन बेरी, इसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, गोल्डन बेरी ऑफ हिमालयन। सो फ्रेंड्स, होली फ्रूट ऑफ हिमालयन। तो ऐसा फल जिसका आज पूरे विश्व में भारत से इसका रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट पिछले 15 साल से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। द शिवक्थॉन इज नोन एज द सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। इसी फल को सुपर फ्रूट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ों में -40 से +40 डिग्री टेम्परेचर में ये खुद ब खुद होता है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी ये फल होता है, क्योंकि इसका रूट है ना 200 फीट का होता है और इसका पेड़ जो होता है 5 से 6 फीट का होता है। पूरे विश्व में इसको सुपर फ्रूट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस फल के ऊपर पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 120 से भी साइंटिफिक रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं लोगों। कौन से लोग? जो साइंटिस्ट हैं। हमारा आपके बगल वाले वो चाचा नहीं है, वो नहीं है जो आपको कहते हैं आपसे नहीं होगा। ये कह रहे हैं जो उनका पूरा जीवन साइंटिफिक रिसर्च में डाल चुके हैं, वो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं ये सुपर फ्रूट है। अब इसी एक फल से पूरे विश्व में, एक ही फल से शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, सॉस, ऐसे बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स, ऐसे बहुत सारे लगभग 144 प्रोडक्ट इस कंपनी, मसाले किचन का लगभग 144 प्रोडक्ट इस कंपनी में है। अब आपको करना क्या है? आप अपने जन्म से आपके बगल वाले चाचे की दुकान से, मामा का दुकान से, वहीं से आप अपने घर का किराने का सामान लेके हर महीने में आप 3 से 5 हजार रुपए खर्चा करते हैं। अब ये 3 से 5 हजार रुपए खर्चा करके आपको क्या मिला? डब्बा खाली, दिमाग खाली, काम खाली। जीवन में क्या किए? 20 साल दिए, फिर भी बोल रहे हैं अब क्या करूं। सोच बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको रोजगार बदलना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है दुकान बदलना पड़ेगा। आपका सपना पूरा करने के लिए सिर्फ आप जहां काम कर रहे हो वहां से 2 घंटा देना पड़ेगा और आपका घर वाला जो घर का सामान है ना, जो खर्चा करते हो जहां से कमा के, आप खर्चा मत करो, वो आप इसी को व्यवहार करो, यहीं से कमाओ और अपना दुकान को बदलो। मतलब दुकान बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ये हम सीखे हैं, हम अपना घर बदले हैं और हमारी आज रोजगार भी बदली है। कैसे? आते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो आपके घर के किराने की दुकान में भी मिलते हैं, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं, क्योंकि उसको ऐड देते हैं। कौन देते हैं? अमिताभ बच्चन जी देते हैं, विराट कोहली जी देते हैं, आज को अनुष्का शर्मा जी देते हैं, शिल्पा शेट्टी जी देते हैं। लेकिन वो सामान क्या वो यूज करते हैं? दोस्त आप एक बार खुद से पूछो, क्या वो अपने घर में ये सामान यूज करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको उस ऐड के लिए पैसा मिलता है और यही पैसा वो उस प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं जिस प्रोडक्ट से उनकी फैमिली को स्वस्थ मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट, केमिकल फ्री। तो क्यों क्या हम अपने घर के सेलिब्रिटी नहीं है?
क्या हमारे घर के लोगों की सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी सेहत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं ऐसा अच्छा प्रोडक्ट हम अपने घर में खिलाएं? कारण एक ही है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा। मैं कहता हूं सोमनाथ भगत, मैं अगर सब्जी बेचने वाले से आज अगर ये डिजिटल मीटिंग कर पा रहा हूं, आज मैं अगर 15,000 कमा के उसका डबल कमा पा रहा हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे से अच्छे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे। आज अच्छे हो बोलकर आज अभी तक आप हो, आज मेरे से क्वालिफाइड लोग हो, क्योंकि आपका क्वालिफाइड सर्टिफिकेट से नहीं, आपका विचार से होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट आपने लिए, और जब भी लोगे ना तो कंपनी भी आपको हेल्प करती है। कैसा हेल्प कहती है कि आप घर का प्रोडक्ट 5,000 का लो तो आपको 2,500 का फ्री मिलेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। आप सिर्फ केवाईसी अपलोड करो, आपको मिलेगा। आप 10,000 का घर का प्रोडक्ट लो, आपको जो मर्जी आपका पसंदीदा लो, आपको कंपनी 7,500 का फ्री देगी। आप 20,000 का लो तो 20,000 का मिलेगा, इस हफ्ते का मिलेगा, और आप इसका कितना इस्तेमाल कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं तो हमेशा कहता हूं सर कि आप अगर 10,000 का शुरुआत करते हो ना, तो आपको 7,500 का कमाई मिलेगा, वो भी फ्री में प्रोडक्ट। 10 घर में 1,000 में शैम्पू होना चाहिए जिसका कोई ट्रेनिंग नहीं है। फेस वॉश लो, आप एक तुलसी लो, एक शिवक्तन लो, हजारों का प्रोडक्ट आप घर पे 10 लोगों को दो और जेब में पैसा डालो, वो 10,000 आपके घर में आ गए, और 7,500 प्रोडक्ट पूरे घर पे खाओ, क्योंकि उसका कीमत अपने शरीर पे डालोगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने मूल्यवान हो। इसलिए कंपनी भी चाहती है कि फ्री का आप खाओ और बाकी दूसरे का रिटेल करो। अगर अमिताभ बच्चन जी अगर नवरत्न तेल बेच सकते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 1,000 का प्रोडक्ट भी 10 घरों में डाल सकते हो। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बचपन से आप क्लिनिक प्लस यूज कर रहे थे, आज सिवक्ट्रॉन शैम्पू यूज करोगे। बचपन से आपने बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स खिलाया, तो आज सिवक्ट्रॉन कॉर्नफ्लेक्स खिलाओगे, क्योंकि आपने सोच बदला है, और सोच बदला है बोलकर ही अभी तक आप हो और अभी तक मुझे सुन रहे हो। आपको मिलेंगे और ये प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे। आप यहीं से अपना फ्री वाला प्रोडक्ट चूज करो और इसके ऊपर सिर्फ जीएसटी दे दो। यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री, अपना केवाईसी डालो, आपका ज्वाइनिंग फ्री, आपको 1,500 भी सिर्फ आपको। आपने 5,000 का प्रोडक्ट लिया, मौका देखो कंपनी कैसी देती है। आप 4 महीना 5,000 का प्रोडक्ट ले लो, महीने की शुरुआत के टाइम में, इस हफ्ते में जो ऑफर है ना, आप 5,000 का ले लोगे और 4 महीना ले लो, महीने की शुरुआत के पहले हफ्ते में, तो आपको क्या मिलेगा? पहले हफ्ते में लेने की वजह से 4 महीना 5,000 करके लिया, आपको 5,000 का प्रोडक्ट 5वें महीने में आपके घर में फ्री का मिलेगा, सिर्फ जीएसटी पे करो। ये भी कंपनी कह रही है कि आप अपना घर का राशन लेते हो, किसी शॉपिंग मॉल से लेते हो, 4 महीना लिए, 5वें महीने आपको बोलेगा फिर पैसा दो, और हम कहते हैं कि पैसा मत दो, सिर्फ जीएसटी पे करो और घर का फ्री का राशन लो, मसाला लो, जो आपको पसंद है वही ले लो। नेक्स्ट, इमीडिएट हमको कमाना है। मुझे जो चाहिए था ना, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, मुझे कमाना था, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल करने के लिए मुझे कमाना था, और एक्स्ट्रा 15 से 20,000 मुझे कमाना था, क्योंकि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि मैं एक ही जगह से कमा रहा था और लॉकडाउन में वो भी बंद था। तो मैंने अपना सोच बदला और मैंने क्या किया, वहीं से प्रोडक्ट लिया और उसको क्या किया, रिटेल कर दिया। जहां रिटेल किया तो वहां पे आपको क्या मिला, 10 से 40% का प्रॉफिट, 10 से 40% का प्रॉफिट। और 10 से 40% का प्रॉफिट जहां मिला वो मुझे अकेले का मिला। मैंने रिटेल किया, मुझे अकेले का मिला। लेकिन मैं हमेशा अपने दोस्त को यही सलाह दूंगा, मुझे जो सलाह मिला था, मैंने कहा था कि जीवन में ना कभी कमाने के लिए अकेले अपने के लिए सोचना मत। ये मेरी कहने की बात नहीं है दोस्तों, इस बात को बहुत गहराई से आप सोचना कि आप अकेले डॉक्टर हो, आप एडवोकेट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशन हो, आप एक स्कूल टीचर हो, जो भी हो सर, आज हम एक्टिव जा रहे हैं, मुझे कमाई मिल रहा है। आज बायोशैस में भी आप प्रोडक्ट 1, 2 महीना, 3 महीना किसी को रिटेल करो, लेकिन आपका सोच यहां भी होना चाहिए कि मेरे पास टीम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आसान होता है ना जिसके पास टीम होता है। आपके घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप 10 फोन लगाओ, 10 लोग आगे, मतलब आपका टीम है। आपको क्रिकेटर बनना है, आपके बैट में स्कोर है, लेकिन तभी लिया जाएगा जब आप टीम में गिने जाओगे।
मतलब आप परफॉर्मर हो, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि आप करोगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। आप खुद लिए 10 से 15 हजार कमा रहे हो, 2 से 3 महीने आप देख लो, टेस्ट कर लो प्रोडक्ट कैसा है, रिव्यू कैसा है, और रिव्यू के बाद खुद का रिव्यू खुद खाकर देखो, और खुद पी कर देखो, खुद गाल पे लगा के देखो, खुद पैरों पे लगा के देखो, दांतों पे लगा के देखो, बाल पे लगा के देखो, कहीं भी लगाओ यार, कहीं भी लगाओ। हर एक प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर एक प्रोडक्ट है यहाँ पे। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी को नहीं मिलता, सिर्फ बायोशैस में मिलता है। ये ओनली वन कंपनी है जहां पे इसका प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, एकमात्र बायोशैस में मिलेगा, क्योंकि ये पहली कंपनी है जो पिछले 28 साल से इसी फल पे काम कर रही है, रिसर्च कर रही है। और डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो साइंटिस्ट इनके प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है बायोशैस प्योर कंपनी है, प्योरिटी कंपनी है, प्योर प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ का प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। अब रिटेल करने के बाद कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे भी काम करना है। क्यों क्यों करना है? क्योंकि उनके घर में भी आपने प्रोडक्ट शेयर किया था, उनको भी अच्छा लगा। अब ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट नहीं, मुझे काम करना है, कमाना है। तो कैसे कमाओगे? मैं यहां से शुरू करता हूं। ये अगस्त का महीना है और दिसंबर तक हम कहां पहुंच सकते हैं, दिसंबर तक हम कहां पहुंच सकते हैं। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। 2 मिनट में अगर समझ जाओगे ना, पूरे दिमाग को खाली रखो, अगले 2 मिनट तक आप शुरू किए, आप पूरे 10 हजार का प्रोडक्ट लिए, खुद लिए, और ऐसे ही 4 लोगों को आपने पूरे अगस्त में आपने 10 लोगों को 10 हजार का प्रोडक्ट आपने 4 लोगों को आपने दिया, और आपने एक सही से टीम किया। क्यों ये टीम 4 लोगों का टीम क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका घर है ना, वो 4 पिलर पे खड़ा होगा। आप खुद खड़े होना, 2 हाथ और 2 पैर पे खड़े होना। तो इसी तरह आप भी 4 लोगों का एक टीम बनाओगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि आप जन्म तो लिए हो, मरने के बाद आपको 4 लोग चाहिए, और यहाँ भी जीने के लिए अगर एक्स्ट्रा इनकम करना है तो आपको लाइफ में भी, बायोशैस में सिर्फ जीवन में 2 लोग चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा कमाना है तो 1 महीने में 4 लोग चाहिए। कौन 4 लोग? जिनको पैसा चाहिए, जिनका भूख सपने का भूख हो, जो अपने परिवार को, अपने बच्चे को, खुद को ज्यादा प्यार करते, अपने माता पिता को प्यार करते, ऐसे लोग चाहिए। वो नहीं कि आपको मंजन लिए और दांत घस कर बोल रहे हैं भैया कल देखेंगे, कल देखेंगे। ये कल की बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करते हैं। आपको ये ऐसे लोगों को चाहिए। तो अगर ऐसे लोग आपके 4 आ गए, अगस्त में आ गए, उन्होंने भी 10 हजार का प्रोडक्ट लिया, यूज किए, रिटेल किए, आपको क्या मिलेगा? आपको पहले महीने इनकम मिलेगा, उसका बीबी अप्रोक्स 50% होता है। मतलब 40 हजार का अप्रोक्स 50% बीबी अगर होता है तो 20 हजार, मतलब लेफ्ट में 10 हजार, राइट में 10 हजार, 10 हजार बीबी का मैचिंग लगभग 1500 का होगा। वहां से आपका 5% टीडीएस कटेगा, आपके अकाउंट में हिट हो जाएगा। ये पहले महीने की कमाई है। और वो जो 4 लोग आपने जोड़ लिए, आप बहुत चैलेंजिंग मूड में हो, आप एक हफ्ते में 4 लोगों को लाए, और 4 लोगों को आप पूरे महीने सिखाए। किसी को लोग आने के लिए मत बोलो, भाई जोड़ो जोड़ो मत कहना। ये 4 लोगों को पहले उनको सिखाओ ये बिजनेस होता क्या है, फिर उनको सितंबर में कहो आप भी 4 लोगों को इस बिजनेस में लाओ जो अपना जीवन परिवर्तन करना चाहता है। तो ये 4 लोगों से आपका 16 लोगों का एक टीम बन जाएगा। दूसरे महीने में आपका इनकम हो जाएगा 4,500 का। वही बिजनेस वो भी करेंगे, लेकिन जिनको आपने लाया था उनका भी वही इनकम होगा जब आपका पहला हुआ था। मतलब ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कि आप लोगों का रोजगार करवा के खुद कमा रहे हो। ये पहली इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन में आप किसी का रोजगार का सोच कर फिर आप खुद कमा रहे हो। सो दोस्त, तीसरे महीने की बात करते हैं, वो 16 लोग 4 लोगों को लाएंगे तो 64 का टीम बनेगा। आपका एक बड़ा सा इनकम आएगा, वो है 18,000। पहला मेरा सोच था कि मुझे ये 18,000 कमाना है, मेरा सपना पूरा हुआ। मैंने ये किया क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे ऐसे ही काम करने हैं। तो मेरा काम क्या था? पहले दिन 4 लोगों को सिखाना, और ये कहना उन्हीं 4 लोगों को मैंने जो आपको सिखाया आप भी वैसा ही सिखाओ। प्रोडक्ट सेल करने की नहीं, आप 4 लोगों को एक बार सिखा दोगे ना तो ये 4 व्हीलर कार हो जाती है, 180 की स्पीड में जाती है, और 3 महीने में आपको 18,000 की कमाई देती है। चौथे महीने में आते हैं, वैसा ही 4 लोग होंगे, 256 का होगा, और 72,000 की इनकम होगी। दोस्त, 5वें महीने मतलब दिसंबर की बात करते हैं, 1024 का आपका टीम हो जाएगा, आपका इनकम 2,88,000 का हो जाएगा। 6वें महीने जनवरी 2022 भूकंप आ गया, पूरा दुनिया में भूकंप आ गया, आपका एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया।
आप सोचो, और किसी ने भी खरीदाई नहीं की क्योंकि किसी ने जुड़ा ही नहीं, लेकिन 1024 लोग आपके टीम में थे, उसका 10% आप सोचो, लगभग 100 लोग। अगर 10,000 का उनका फिक्स कस्टमर सिर्फ रिटेल किए, सिर्फ फिक्स कस्टमर को रिटेल किए, वही 10,000 का प्रोडक्ट, मतलब 100 लोग 10,000 का प्रोडक्ट। सोचो सर कैसा होगा। आपका 10 लाख का बिजनेस होगा और 10 लाख का आज 15%, मतलब लगभग लगभग आप सोच लो सर कि 2,88,000 से आपका कम से कम 28 से 30,000 का तो इनकम होगा ही होगा। सोचो कि महीने का 30,000 का इनकम, आज 5 महीने अगर हम ढंग से काम किए, अगर 5 महीने हम ढंग से काम करते हैं तो 5 महीने के बाद ना, हमें ढंग नहीं, हमें सिर्फ साथ देना पड़ता है, हमें नौकरी नहीं, हमें सिर्फ किसी को साथ दे देना पड़ता है। ऐसे ही साथ मुझे मिला था, आज से करीबन लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अब 2 साल होने वाला हूं। दोस्तों मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ कंधे पे कंधे को डालकर बोला कि तू ये कर, मैंने किया, तू ये कर, अपना दिमाग मत लड़ा, क्योंकि अपना लड़ाएगा तो आने पिछले 20 साल का जो नाकामयाबी है ना, वही तेरे को रिटर्न आएगा। बस मेरा दिमाग लड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में मैंने ऑलरेडी 15 साल गुजारा है, और कैसे मैंने भी गलत किया था वो मैंने सीखा है। तो गलतियों को नहीं दोहराना है और हमें गुरुओं से सीखना है। तो मैंने सीखा और ऐसे ही कमाया। और मुझे क्या मिला? मुझे पैसा सिर्फ नहीं मिला, इस इंडस्ट्री से सिर्फ पैसा नहीं मिला, सिर्फ ताली नहीं मिला। मुझे जो मिला है अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए, मेरे बच्चे के लिए भी, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th तक है। मुझे क्वालिफिकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा इस इंडस्ट्री में। आप अगर ढंग से अपना 5 महीना दोगे ना, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल मिलेगा जो आपका फ्री है, आपको फ्री में मिलेगा। मनी मैनेजमेंट स्किल, आप पैसा कमा तो रहे हो, कैसे रखना है, कैसे कमाना है, कहां डालना है, आपको इधर फ्री में मेंटरशिप मिलेगा। टीम मैनेजमेंट, ये जो मैंने अभी टीम की बात की ना, ये टीम आपको कैसे चलाना है, कैसे टीम बनते हैं, कैसे टीम आपका होगा, आपको आगे नहीं सोचना है, सिर्फ आना है और अपने दिमाग को किसी के सामने झुकनाना है। पीपल स्किल, लोगों के सामने बात करने की कैसी स्किल होनी चाहिए, लोगों को कैसे फेस करना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, मैं पहले था 2 साल पहले लोगों के सामने इतना नहीं बोल पाता था, बोलता तो जरूर था क्योंकि मैं गूंगा हूं नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि लोग आपको देखेंगे भी नहीं, सिर्फ सुन पाएंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत आपको प्यार करेंगे, जो दिल से प्यार करेंगे, बड़े भाई जैसे प्यार करेंगे। लीडरशिप स्किल, आपको लीड करना है, मतलब डटना है, हटना नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जीवन में जो बाधाएं आपको आते हैं, क्यों आज तक भी आप जो सपना आपका था आपने अधूरे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए वो आपको ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मतलब आपके अंदर जो द्वंद्व है वो भी आपका पूरा करेंगे कि नहीं तो आपका सही होगा। यही चीज मुझे सिखाया गया था, मैंने सीखा, और मैंने सीखा इसलिए मैंने आज आपको बताया। ये आधे घंटे 40 मिनट जो आपने मुझे दिया, ये जो प्रेम आपने मुझे दिया ना, ये प्रेम बहुत बहुत महत्व रखता है सर। क्योंकि मुझे जो मिला है, मैं आज किसी को ऐसे समझाने से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी जो एक्साइटमेंट है, अगर आपको लगता है कि ये सही है, ये ऑनेस्ट है, तो आज आप एक सिद्धांत लोगे। आपके दोस्त जिन्होंने आपको आज बुलाया, आपके मित्र जिन्होंने आपका भला चाहा, जो आज ऐसे एक खुश मिजाज दिनों में, फ्रेंडशिप डे के दिन आप जुड़ भी गए वो इस इंडस्ट्री में, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप एक खुद से आज एक वादा करो, दुनिया हिला देंगे हम, क्योंकि हम अलग हैं सर। पूरी दुनिया में हिला देंगे क्योंकि बायोशास अपनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारा फैमिली। वो जो हमारा फैमिली है, जिस फैमिली का नाम है एसबीटी फैमिली, हम यूनाइटेड हैं, हम साथ मिलते हैं, हम साथ सीखते हैं, और हर बुरे दिन में भी हम साथ रहते हैं, क्योंकि हमें हर एक इंसान का, हर एक दोस्तों का अच्छा दिन देखना है। जो चाहते हैं खुद का परिवर्तन, हम उनके साथ रहते हैं। एसबीटी फैमिली आपके साथ है दोस्त। खुद को ऐसे जकड़ के पकड़ लो कि मुझे जीना है, मुझे एक बहुत बेहतर जिंदगी जीना है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए एक सुंदर सा सपना पूरा करना है। वो एक अच्छा घर होगा, अच्छा एक गाड़ी होगा, एक फॉरेन ट्रिप होगा, ऐसा लाइफस्टाइल लीड करना है। और मुझे एक अच्छा इंसान के लिए मैं हर एक स्किल को धीरे 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 सीखूंगा। ऐसी मेरी अंदर ये स्टूडेंटशिप है।
अगर ऐसे ही आप करोगे ना सर, तो आपको बहुत 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 मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऐसा समय बिताने के लिए। मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही प्यारा सा कुछ टेस्टिमोनीज। जो टेस्टिमोनीज आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जो हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट यूजर हैं जो यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद भी ऐसे मौके देंगे जो हम ऐसे अचीवमेंट है जो लॉकडाउन में मिले हैं। ऐसे लॉकडाउन में तो हम पहले ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका आज जबरदस्त टेस्टिमोनी है सर। तो ये टेस्टिमोनी हम शुरू करेंगे मल्लारपुर से, शामिली लेट मैम से। मैडम आप हैं क्या? खतरनाक उनके साथ एक घटना घट चुकी थी, बहुत ध्यान से सुनना सर। शमीली मैम, आप आज हमें सुन रहे हो क्या? ये सर। उनके साथ क्या दुर्घटना घटा था, आप थोड़ा बताएंगे हमारे लोगों को? হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা স্যার। আমি বীরভূমের মল্লারপুর থেকে বলছি। আমি একটা ছোট্ট গ্রামে থাকি। সামনেই একটা নদী আছে, ওই নদীতে স্নান করতে গিয়ে চোরা বালিতে আমার পা ঢুকে যায়। তারপর পাটা মানে একটা ভাঙা প্লেট ছিল, ওই প্লেটটা পায়ের গোড়ালির ওপরে বেঁধে যায়। তারপর আমি পাটাকে তুলে তারপর মানে ওইটা বের করি। বের করার সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরে। তারপর আমি তাড়াতাড়ি চলে এসে বাড়িতে এসে ডেন্টো শ্বাস লাগালাম, তাতেও মানে রক্ত ঝরছে। তারপর ফিনকিটা একটু পর বন্ধ হলো, ফিনকি দিয়ে পড়াটা, তবুও ঝরে চলেছে। তারপর আমি এসে মানে অনেক কাজকর্ম সারার পর ওই স্যারকে মানে সুধীর স্যারকে ফোন করলাম যে আমার এরকম পা কেটে গেছে, তো রক্ত ঝরছে, তাহলে কি করব? তখন উনি বললেন যে তুলসীটা লাগান। তুলসীটা লাগালাম, তখন তার একটু পরেই মানে ঝরছিল ওইগুলো বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে উনি বললেন যে রাতে আবার সিপাকথন জুসটা লাগাবেন, দিয়ে ঘুমাবার সময় লাগাবেন। তো আমি লাগিয়েছিলাম। লাগার পর দেখি সারা রাতে ঘুমের পর দেখছি আমার আর কোনো ব্যথাও নেই, বেদনাও নেই, কিছুই নেই। তারপরে সকালে উঠে দেখছি যে মানে যে ক্ষত স্থানটা ছিল সেটা একদম জোড়া লেগে গিয়েছে। তারপরে আমি দেখলাম যে হাঁটা চলা শুরু করছি, তো একটুকু ব্যথা বেদনা কিছুই নেই। আর এখন তো পুরোপুরি মানে শুকোই নেই, তাহলেও একটু আছে, কিন্তু ব্যথা বেদনা কিছু নেই। তাই আমি দেখছি সিবাকথন শুধু খেলেই যে উপকার করে তা নয়, আমি লাগিয়েও দেখলাম যে অনেক উপকার করে। থ্যাংক ইউ সিবাকথন, থ্যাংক ইউ সিবাকথন গুরুকে। এই যে আমি এটা ব্যবহার করেছি, এতে আমার অনেক আমি ভালো আছি। তো এটা যেন সকল মানুষেরই প্রয়োজন, এই সিবাকথন সকল মানুষেরই দরকার, এটা আমাদেরকে বোঝাতে হবে। আর বুঝলে আমাদের মানে গোটা বিশ্ব সুস্থ থাকবে। এটা এই পর্যন্তই বললাম স্যার। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट एक्साइटेड न्यूज सर। सोचो सर, कितना कमाल का न्यूज है सर। तो ऐसा कमाल का न्यूज और दूसरे हम भी सुनेंगे फिर दोस्तों के साथ। मिस्टर विजय महातो फ्रॉम पुरुलिया। স্যার আমি পুরুলিয়া থেকে বিজয় মাহাতো বলছি। যে আমি একজনের বাড়িতে আমি গেছিলাম 1 মাস আগে। তো দেখছি উনি এক প্রেসার মাপাচ্ছে আর কি, একজন এসেছিল প্রেসার মাপাচ্ছে, আমি বসেছিলাম। তো প্রেসার মাপলো, দেখছে ওর অনেক প্রেসার, 110+180। আমি বললাম "বাহ, এত প্রেসার?" বলছে হ্যাঁ প্রেসার আছে অনেক। বলে কি খাচ্ছ? বলছে "এই ওষুধ খাচ্ছে, এলোপ্যাথিক ওষুধ।" বলি, ঠিক আছে। তো এই করতে করতে গল্প করতে করতে আর কি হঠাৎ আমাকে বলছে তোমারটাও মাপাইলাও, তুমি দেখো তোমার কোনো নাই বলছে। তো আমি বলি, হ্যাঁ মাপা তো দরকারই আছে। তো আমি মাপাইলাম, তো আমারটা বার হয়েছে 110+160। তো বলছে তোমাকে তো এবারে ওষুধ খাতে হবে, তুমি বললে যে আমার কিছু রোগ নাই। আমি বলছি ঠিক আছে, আমার ওষুধের দরকার নেই, ওষুধ আমার ঘরেই আছে। এমন ওষুধ আছে যে আমাদের 1 মাসের মধ্যে আমি ঠিক করবো। তো বলছে কি এমন জিনিস আছে? তা আমি বলি আছে জিনিস। তো
বলছে ঠিক আছে তুমি আগে খাও তারপরে আমাকে বলবে, 1 মাসের ভেতরে তুমি তাহলে তো ডাক্তারের লোক বেশি। বলছে হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস আছে যে আমি 1 মাসের ভিতরে ঠিক করবো। তো আমি এসে করে সিবাকটন জুসটা শুরু করেছি। 1 মাস ধরে খেয়েছি। 1 মাসের মাঝখানে মাপাইছি। মাঝখানে মাপাতে মোটামুটি প্রেসার দাঁড়িয়েছে 90+100। যে মাপে ছিল তাকে বললাম যে, বলছে আমাকে, বলছে বিজয় দা এত কম কি করে হয়ে গেল তোমার, এত তাড়াতাড়ি তুমি কি করে কমালে, কি খালে? তো আমি ওকে ওকে বললাম যে আমাদের এই যে সিবাকটন জুস আছে এটা খেয়ে আমার কম হয়ে গেছে। যে দারুণ জিনিস তো। তো এখন সিবাকটন জুসটা খেয়ে আমি অনেক ভালো আছি আর সুস্থ আছি, প্রায় প্রায় নর্মাল হয়ে গেছে প্রেসার, কোনো অসুবিধা নেই। थैंक यू मिस्टर विजय सर, थैंक यू वेरी मच। अगली फोन करेंगे वही मल्लारपुर पे स्कूल टीचर सत्यवान लेट सर को। सर आप हमें सुन पा रहे हो सर? হ্যাঁ স্যার। जी सर, आप হ্যাঁ, एक्सपीरियंस सर। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকের এই ফ্রেন্ডশিপ ডেতে উপস্থিত সকল এসবিটিয়ান যোদ্ধাদের প্রতি যথাযোগ্য প্রণাম, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে কিছু বলার মানে বাস্তব প্রয়োগের ভিত্তিতে কিছু বলার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি চরম ধন্য বলে মনে করছি। তো আমি দীর্ঘদিনের একজন গ্যাস অ্যাসিডিটির পেশেন্ট ছিলাম। এটা সুজিত স্যার খুব ভালো করেই অবগত ছিলেন, কারণ ওনার সঙ্গে ওনার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে আমার স্টুডেন্ট লাইফ হইতে। তো আমি এই গ্যাস অ্যাসিডিটির জন্য ডোর টু ডোর কোন ডাক্তারের কাছে না গিয়েছি, সেখানে দেখার পরে ডাক্তাররা ট্রিটমেন্ট করার পরে আমাকে বলে, "এই, আপনার তো মানে একদম হার্কুলেস বডি।" কেউ বলে যে আপনি তো একদম মজবুত, কোনো সমস্যা নেই, এটা আপনার মনের প্যানিক। কিন্তু স্যার, যে জ্বালা যন্ত্রণা আমি ভুগতাম রাতের বেলায় ঘুমাতে ঘুমাতে, রাত করে ঘুম থেকে একটা ব্যাক ফ্লোর সৃষ্টি হতো, তারপরে রাতে ঠিক মতো ঘুম হতো না। তো এই বায়োসাস প্ল্যাটফর্মে এসে আমি যে উপকারটা পেয়েছি সেটা হলো পঞ্চতুলসী ড্রপ, যেটা না থাকলে মনে হয় আজকে কি আর বলবো, প্রাণের প্রিয় ও অর্ধাঙ্গিনী না থাকলেও চলে, কিন্তু পঞ্চতুলসী ড্রপটা যদি চোখে না দেখতে পাই মনে হয় যেন গোটা পৃথিবীটাই মনে হয় কোথায় একটা অন্ধকারে ডুবে গেছে। তো এই পঞ্চতুলসী ড্রপ আমি নিয়মিত সেবন করে চলি এবং আমি দেখেছি আজকে আর আমাকে কোনো রকম কোনো গ্যাস অ্যাসিডিটির জন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় না, এবং ডাক্তার বন্ধুদের সেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার হতে হয় না। তো পঞ্চতুলসী ড্রপ যে কি মিরাক্কেল মানে প্রোডাক্ট, একটা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই তো মিরাক্কেল গুণ রয়েছে, কিন্তু কার ক্ষেত্রে কোনটা কোথায় প্রযোজ্য হবে সেটা জাস্ট প্রয়োগের উপরে নির্ভর করছে। তো আমার ক্ষেত্রে পঞ্চতুলসী ড্রপ একটা অনবদ্য অনন্য সাধারণ, মানে আমি তো মানে ঈশ্বর মানে সম্মান এবং পূজনীয় অধ্যায়ে এই প্রোডাক্টটাকে রাখি সব সময়। দ্বিতীয়ত আর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। একদিন রাতে স্কুলে প্রচন্ড চাপে আমি একটা চাইল্ড স্কুলে কাজ করতে করতে এবং আমার অজ্ঞাত সারে বাঁ চোখে একটা আঁচিলের মতো ঘামাচি মতো হয়েছিল। তো ওইটাকে এই পেন দিয়ে সুসু করতে করতে, কিছু বদ অভ্যাস আমাদের থাকে, এমনি করে চুলকাতে গিয়ে ওটাতে টাচ হয়ে যায় এবং এত ব্লিডিং হয়, এত ব্লিডিং হয় যে আমার মুখটা গোটাটা ছেপে যায়। তো তখন এই রক্ত দেখে কিন্তু আমিও ভয় খেয়ে যাই এবং আমার সঙ্গে মিসেস বলে, কি ব্যাপার, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা করছে নাকি? আমি বলছি, না জ্বালা যন্ত্রণা করে না, কিন্তু এত মানে ব্লিডিং হচ্ছে, এটাই তো ভয় লেগে যাচ্ছে, কি ব্যাপার। হঠাৎ কিন্তু মানে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায়, আমি তো এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে খুবই ভালো সজাগ থাকি, বিশেষ করে বায়োসস যে প্রোডাক্ট গুলো রয়েছে তার প্রত্যেকটা গুণগুলোকে মনে রিমাইন্ড করলাম যে তো পঞ্চতুলসী ড্রপ তো স্যার বলেছিলেন যে কোনো ব্লিডিং হলে বা চর্ম রোগের যে কোনো প্রবলেমে যদি এটা প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটা মানে তুরন্ত সমাধান আসবে। তো আমি ওই তুলোতে লাগিয়ে ওই যেখানটা ফেটে গেছিল সেখানে জাস্ট মিনিট বলবো না, কয়েক সেকেন্ড ওটা দেবে ধরে ছেড়ে দিলাম। তো হালকা একটু ধরলো, তো তারপরে দেখলাম সেই রক্ত পাত বা রক্তক্ষরণ যে বিভীষিকাময় যে ব্যাপারটা, সেটা কিন্তু একদম পুরো টোটালি স্টপ হয়ে গেল।
তো সঙ্গে সঙ্গে মনের যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে আমি মুক্তি পেলাম। তো সেই জায়গা থেকে কি বলবো যে বায়োসাসের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মধ্যে এমনই এক অদ্ভুত অদ্ভুত মানে অনন্য সাধারণ গুণ রয়েছে। তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই শুধু কোনো ব্যক্তি পক্ষে নয়, তাবৎ প্রাণী জগৎ এবং মানে মনুষ্য কুলের এক অনবদ্য ঈশ্বরের দেওয়া আশীর্বাদ বলে আমি মনে করি। তো আমরাও স্বর্গীয় সেই রমেশ কান্নাজির এই মূল্যবান পরিশ্রমের যে গড গিফটেড প্রোডাক্ট, এই বার্তাটা আমরা যেন প্রত্যেকে এইরকম উপকারে উপকৃত হোক, এই বহনের মানে সেই বার্তাটা যেন পৌঁছে দিতে পারি এবং মনুষ্য সমাজ যেন এতে উপকৃত হয়, সেটাই আমাদের একমাত্র মহান এবং মূল ব্রত হওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বাস্তবকে Thank জানালাম। you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Next, Mr. शरणेंदु सर, शरणेंदु सेनगुप्त सर, आप मुझे सुन हाँ रहे सर, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल। আমি সরোজিনী সেনগুপ্ত নওগাঁ থেকে বলছি। সবাইকে হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে প্রত্যেককে জানাই। আমি বায়োসাস সম্বন্ধে জাস্ট এক সপ্তাহ হলো আমার সঙ্গে পরিচিতি বায়োসাসের। তো বায়োসাস যখন আমার পরিচিতি ঘটে মানে আমি জানতে পারি বায়োসাস প্রোডাক্ট সম্বন্ধে এবং শিবাক্ষণ ফল সম্বন্ধে, আমি কিছুটা পড়ি, আমাদের বইটা চাই দেন আমি কিছুটা পড়ি। পড়ার পর আমি শিবাক্ষণ ফলটার উৎপত্তি সম্বন্ধে জানি এবং সেটা সম্বন্ধে একটুখানি খোঁজ খবর নিই, দেখি শিবাক্ষণ ফলটা কি জিনিস। এবং আমাকে একটা তুলসী দেওয়া হয়েছিল, তুলসীটা দেওয়া হয়েছিল এবং এই তুলসীটার যে উপকারিতা সেটা আমার বলা হয়েছিল। আমার মিসেস বেশ কিছুদিন ধরে বলছে যে আমার ওর একটা প্রবলেম ছিল, গ্যাস অম্বলতা প্রচন্ড প্রবলেম ছিল অপারেশনের পরে। তো প্রত্যেকদিন প্যান্ডি তাকে খেতে হতো, প্রত্যেকদিন সকালবেলা সে তাকে খালি করে প্যান্ডি খেতে হতো, তবুও তার কিন্তু গ্যাস অম্বলতা পুরোপুরি কিওর হতো না। তো যবে থেকে ওইটা আমার ঘরে এসেছে, আমার বাড়িতে এসেছে পঞ্চতুলসী, এবং পঞ্চতুলসীটা যখন সে নিতে শুরু করে সেই আমাকে বলে যে আমার কিন্তু এখন আর গ্যাস অম্বলের কোনো ওষুধ লাগছে না, আমি আর প্যান্ডি খাচ্ছি না। আমি দেখি না আমাকে আনতেও বলছে না ওষুধ। এবং 2-3 দিন 4 দিন যাওয়ার পর একদিন আমার শরীরটা অসুস্থ হলো, রাত্রিবেলায় আমার ঘুম হলো না এবং কোন একটা কারণে টেনশন বা যে কোনো একটা কারণে আমার ঘুম হলো না সারা রাত্রি। সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর শরীর কিন্তু যথারীতি মানে একটা ট্রাবল দিতে শুরু করে, একটা প্রবলেম হয়। এবং আমি কি করবো তখনও কিন্তু আমাকে আমার মিসেস বলে যে তুমি তুলসীটা খাও। আমি যেই তুলসীটা 8 থেকে 9 ফোঁটা দিই আমার জিভে ফেলি, ঠিক তো 1 মিনিটের মধ্যে আমার যে শরীরের মধ্যে যে একটা ম্যাচম্যাচি ভাব করা, একটা যে মানে আনইজি করা এবং আমার পেটের মধ্যে সমস্যা গুড়গুড় করা বা যে কোনো যে সমস্যাগুলো গ্যাস অম্বলতায়, সেই সমস্যাটা টোটালটাই কিওর হয়ে গেছে। আমি অদ্ভুত হয়ে দেখলাম, একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম যে এটা কি সম্ভব হয়, মানে কোনো ওষুধে আজ পর্যন্ত তো আমি দেখিনি যে তার রিয়াক্টটা এত তাড়াতাড়ি তার এফেক্টটা আছে, এত তাড়াতাড়ি মানুষ শরীরে হয়। তখন আমি একটা জিনিস চিন্তা করি এটা ওষুধ না, এটা না ওষুধ। এবং আমি গত পরশু দিনকে আমি যেখানে একটু মানে গল্প গুজব করি সেখানে আমার এক বন্ধু আছেন, সেই বন্ধু বহুদিন ধরে গ্যাস অম্বল প্রবলেম যেমন তার মারাত্মক, তার সকালবেলায় ক্লিয়ার হয় না ঠিকঠাক মতো। এবং যার জন্য কি হয়, সে কালকে তার হঠাৎ 3-4 দিন ক্লিয়ার না হওয়াটা কি হবে, কালকে তার প্রেশার হঠাৎ করে হাই হয়ে যায় এবং ডাক্তারের কাছে তার প্রেশারের সে যে ওষুধটা খায় সে ওষুধটা 7-8 দিন খায়নি এবং সেটা না খাওয়াতে তার কি হয়ে ডাক্তার প্রেশারটা যখন হাই হয়ে তার প্রেশারের ডোজটা বাড়িয়ে দেয়, ওষুধের ডোজটা। এবং সে যখন এই কথাটা বলছি যখন, তখন আমি বাড়ি থেকে এসে তাকে গিয়ে আমি তাকে বললাম তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছে না, এটা ওষুধ বলবো না, মহাঔষধ দিচ্ছি, তুমি যদি বিশ্বাস করতে পারো তাহলে তুমি এটা খেতে পারো। আমি সেটা খেয়ে ভালো আছি এবং আমি সেটাতে রেজাল্ট পেয়েছি, আমার বাড়ির লোকও সেটা রেজাল্ট পেয়েছে। এবং তাকে নিয়ে গিয়ে শুধু কালকে রাত্রিবেলায় আমি দিয়েছি, রাত্রিবেলা দেওয়ার পর তাকে আমি বললাম যে খাওয়া দাওয়ার পর কি খাওয়া দাওয়ার আগে তুমি খেয়ে শুয়ে পড়বে। সকালবেলা তার ডিউটিতে যায় প্রত্যেকদিন 9:30টার সময়, এবং সকালবেলায় যাওয়ার আগে বা খালি পেটে একবার খেয়ে নেবে। তোমার এখন বেশি হয়েছে, তুমি 9 থেকে 10 ফোঁটা খেয়ে। সে রাত্রিবেলা ওটা খাওয়া দাওয়ার পর খেয়েছে 9 থেকে 10 ফোঁটা, রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে। পরদিন আজকে সকালবেলা সে তার টোটালি ক্লিয়ার হয়েছে। পরে আমি জানতে পারলাম
যখন নাকি 10টার সময় সে যাচ্ছে, ট্রেনে করে যাচ্ছে, তার গন্তব্যে যাচ্ছে, তার কাজে যাচ্ছে, সে ট্রেন থেকে আমার ফোন করেছে, ভাই কি জিনিস দিয়েছো তুমি আমাকে। আমার সকাল আগে 3 দিন পরে প্রিয়, এবং আমি সকালবেলায় খেয়েছি আমার খালি পেটে। খাওয়া দাওয়ার পর যখন হচ্ছে আমার শরীরে এখন আমি এত রিলিফ, এতদিন কোনোদিনই আমার মনে হয়নি যে আমি এতটা শারীরিক দিক দিয়ে রিলিফ পেয়েছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু না, আমি নিজে ইউজ করেছি, এবং আমার এই যে আমি ইউজ করে যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেটা আরেকজনকে আমি এখন থেকে আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স এসছে, আমার মধ্যে একটা ইচ্ছে এসেছে, একটা শক্তি এসেছে, যেটাই বলা যায় না কেন, আমি একজন কেন, আমি 1000 1,00,000 জন মানুষকে এই জিনিসটা দেবো, তাদের পরিষেবা দেবো, তাদেরকে বলবো, তাদেরকে পরামর্শ দেবো, তারা যেন প্রত্যেকে ইউজ করে বায়োসাসের প্রোডাক্ট। তুলসী এবং শিবস্থানে যেসব প্রোডাক্ট গুলো আছে, তার শিবস্থান ফলটা নিয়ে আজকে মানে প্রচন্ড চর্চা এবং প্রচন্ড পরিমাণে শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশে হচ্ছে, কিন্তু ফলটা তৈরি হয় আমাদের দেশে। তো এটা আমাদের গর্ব একটা, আমরা এই ধরনের একটা প্রোডাক্ট পেয়েছি। ধন্যবাদ স্যার, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये कहानी हर घर में पहुंचे, ये कहानी हर घर में तैयारी हो रही है, और आने वाला समय, आने वाले 2 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी ऐसी होगी जो बायोसास के सामने खड़ी हो सकती है। और हम इतना वादा कर सकते हैं कि आप जो आज यहाँ पे हो, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आप शिखर पे होगे, क्योंकि आप अलग हो। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपसे इस लॉकडाउन के अचीवर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग इस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी माने हैं। इस लॉकडाउन में जो लोग कहते हैं कि मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में पैसा छुपा हुआ है। ऐसे जादूगरों से हम बात करेंगे। उसी में ब्रांड न्यू गोल्ड एग्जीक्यूटिव, द मोस्ट इनोवेटिव, जबरदस्त, बहुत अच्छे एक इंसान हैं, और जबरदस्त क्या बताऊं उनके बारे में, जितना भी बताऊं बहुत कम है। हमारे सबके प्रिय और सबको चौंकाने वाले द हीरा ऑफ एसबीटी फैमिली, मिस्टर कृष्णेंदु मल्लिक। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मिस्टर सर, दादी हमें भी बता दो कैसे आप खेल रहे हो सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। তো স্যার মেনি মেনি থ্যাঙ্কস যে আপনার মতো মানুষ যে আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য, তার জন্য আপনাকে স্যার শতকোটি প্রণাম। তো আজকে যে আপনি যে আমাকে যে কিছু বলার যে সুযোগ দিয়েছেন, টোটাল এসবিটি ফ্যামিলিকে আমার তরফ থেকে প্রণাম। তো থ্যাঙ্কস জানাবো সেই কর্ণধার, যে বায়োসাসের মতো যে কোম্পানি একটা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন স্যার অর্জুন খান্না। আজকে উনি যদি আমাদের হাতে বায়োসাসের মতো কোম্পানি তুলে না দিতেন, 140 ধরনের প্রোডাক্ট যদি উনি আমাদের হাতে না দিতেন, আজকে কিন্তু আমরা এই জায়গা বা এই স্থান পেতাম না। আরেকটা যে থ্যাঙ্কস জানাবো স্যার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কর্ণধার স্যার কৌশিক মল্লিক, যে আজকে উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি বায়োসাসকে না নিয়ে আসতেন, তা আজকে কিন্তু আমরা এই জায়গা পেতাম না। তা থ্যাংক ইউ কৌশিক স্যার, আপনাকেও শতকোটি প্রণাম। এবার যে থ্যাংক জানাবো, যে মানুষটা আমাকে সব সময় সাথ দিয়েছেন, সাথে থেকেছেন, বিজনেস শিখিয়েছেন, আজও আমাকে একটা বড় শীর্ষে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য উনি নিয়েছেন, যে দায়িত্ব উনি নিয়েছেন, তা আমি ওনাকে শতকোটি প্রণাম জানাই। স্যার দীপক দরুই, যিনি আমার মায়ের হার্ট, খুব কাছের মানুষ, খুব প্রিয় মানুষ। আজকে যে আমার যে গোল্ড অ্যাচিভমেন্ট, আজকে যে একটা স্থান, আজকে যে জায়গাটা পেয়েছি, শুধু আমি যে পেয়েছি, আমার ছোট্ট অর্গানাইজেশন তারা যদি আমাকে সাথ না দিত, আজকে কিন্তু আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না বা এই অ্যাচিভমেন্ট আমি পেতাম না। তা থ্যাংক জানাই সমস্ত আমার অর্গানাইজেশন বা আমার টিমকে। আমার যে লক্ষ্য, আজকে যে ওরা আমাকে যে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, আমার লক্ষ্য আজকে প্রত্যেকটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঘরে ঘরে বায়োসাসের মতো প্রোডাক্ট যেন পৌঁছাতে পারি তাদের মাধ্যম দিয়ে।
তাদের মাধ্যম দিয়ে পৌঁছে তাদের যেন একটা ভালো একটা জায়গা, ইনকামের রাস্তা যেন তৈরি হয়। প্রত্যেকটা মানুষ যেন বায়োসাসকে সাথ দিয়ে প্রোডাক্ট ইউজ করে, বিভিন্ন প্রবলেম থেকে হেলথ বা ইনকাম দুটো দিক থেকেই যেন বেনিফিট পায়, এটা আমি সবসময় চাই। তা আমার একমাত্রই লক্ষ্য আমার অর্গানাইজেশন যাতে আমি যে জায়গায় পৌঁছেছি, গোল্ড অ্যাচিভমেন্ট করেছি, সেটা বড় কথা না, আমার তলায় কতগুলো গোল্ড আনতে রেডি করতে পারবো, কতগুলো সিলভার রেডি করতে পারবো, সেইটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। আমি সবসময় আমার অর্গানাইজেশনের সামনে বলেওছি যে আমি সিলভার অ্যাচিভ করা মানে আমি নয়, আমি হাতে নিয়ে 4-5 জনকে নিয়ে সিলভার অ্যাচিভ করব। আমি গোল্ড অ্যাচিভ করা মানে সাথে নিয়ে গোল্ড অ্যাচিভ করব। আমি কখনো একা গোল্ড অ্যাচিভ করতে চাইনি, কিন্তু আজকে আমার সবসময় লক্ষ্য যে তাদের কত তাড়াতাড়ি গোল্ডে নিয়ে আসবো, কত তাড়াতাড়ি অ্যাচিভমেন্টে নিয়ে আসবো, কত তাড়াতাড়ি তাদের একটা ভালো জায়গা তৈরি হবে। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো জায়গায় আমরা চাই প্রত্যেকটা মানুষ বায়োসাসকে ভালোবেসে তাদের প্রোডাক্ট ইউজ করবে। কেন, বায়োসাস হচ্ছে অনেক কোম্পানি মার্কেটে আছে, কিন্তু বায়োসাস হলো কিছুটা হলো আলাদা। প্রোডাক্টের দিক থেকে বলুন, মার্কেটিং প্ল্যানের দিক থেকেই বলুন না কেন, কেন প্রোডাক্ট আমি আজকে বায়োসাস কোম্পানিতে জাস্ট 6টা মাস এসেছি, কিন্তু 6 মাসে আমি যতগুলো মানুষকে হেল্প করেছি বা যতগুলো বাড়িতে আমি পৌঁছেছি, আজও পর্যন্ত কোনো নেগেটিভ বা ফিডব্যাক পাইনি। তার জন্য বায়োসাস কর্ণধারকে আবার থ্যাঙ্ক জানাবো যে ওনার বায়োসাসের মাধ্যম দিয়ে 140 ধরনের যে প্রোডাক্ট দিয়েছেন, আমরা যে প্রোডাক্ট যে মানুষকে চোখ বুজিয়ে দিয়েছি, সেই মানুষই কিন্তু আমাদের কাছে ফিডব্যাক দিয়েছেন। তার জন্য থ্যাঙ্ক জানাবো কৌশিক মল্লিককে আবার একবার। তো এরকম একটা জায়গা, এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মে আমরা পা দিয়েছি, সেই প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে স্টিলের মতো চকচক, কোনো সময় লোহার পাত নয় যে আপনার ওখানে মরচে ধরবে বা মরিচা আসবে। আপনি স্টিলের পাতের উপর পা দিয়ে আছেন যে যেখানে কোনোদিন মরচা আসবে না। তো সেই জায়গা থেকে মাই হার্ট, আমার অর্গানাইজেশন বা আমার আপলাইন মেন্টররা যেভাবে আমাকে গাইড করছে, তা আমরা চাই খুব বড় একটা জায়গায় ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে বায়োসাসকে একটা এমন একটা স্থান দেবো যখন আমরা প্রত্যেক জনায় ইনকাম ওয়াইজ বা হেলথ ওয়াইজ একটা বড় জায়গায় যেন স্থান করতে পারি। এটাই আমার থেকে বলার কথা। তা এটাই বলে স্যার, ওভার টু সোমনাথ স্যার। Thank you very much. Once again, thank you very much. The Goa trip achiever, the brand new gold achiever, the lockdown achiever, the diamond leader of SBD family, Mr. Krishnendu Mullik sir. Thank you very much. থ্যাংক ইউ Lovely share. অনেক 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 অনুভূতি আজকের দিনে প্রচুর মানুষের মধ্যে আপনি ফিরিয়ে दिलें। नेक्स्ट मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो इस लॉकडाउन में नेक्स्ट गोल्ड को अचीव किए हैं। हमारे बहुत प्रिय हमारे मित्र हैं और बहुत सुंदर आदमी हैं, मिस्टर विश्वजीत बेरा सर। आप हो क्या सर? मिस्टर विश्वजीत बेरा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम अब की बार बात करेंगे उनके साथ जो इस क्रिएटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, जिस मौके को चौके में बदल रहे हैं और इस चौके को छक्के में बदल रहे हैं, जो आज बंगाल में सबसे यंगेस्ट अचीवर हैं और अचीवर क्रिएटर हैं। सिर्फ रैंक में नहीं, इनकम में भी बहुत शानदार जगह पे हैं और आने वाले समय पे बहुत जानदार लोगों को ये एक क्रिएटिविटी करते जा रहे हैं। और उनके नाम लेने के लिए मैं सबको तहे दिल से द ब्रांड न्यू अचीवर क्रिएटर, द लॉकडाउन अचीवर क्रिएटर, द डायमंड लीडर, टचिंग डायमंड, द मोस्ट हैंडसम, द डिलीशियस, द चॉकलेट बॉय, मिस्टर दीपक दोली सर को हम बुलाने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে সেশন মার্ভেলাস, মানে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ফাটাফাটি সোমনাথ স্যার আজকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আজকে আমাদের ইনকাম কেন দরকার আর কিভাবে আমরা করব। আর এর থেকে সহজভাবে আর মানে আমি তো শুনিনি বা ফুরুদ্দিন আমাদেরকে এইভাবে কেউ বোঝায়নি যে এইভাবে করলে এত বড় জায়গা তৈরি হয়।
আমি যারা এখনো পর্যন্ত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে পারি, ভাবলে ভেবেই যাবেন, ঠিক আছে? শুরুটা আপনাকেই করতে হবে, কারণ ডিসিশন আপনাকে নিতে হবে। মানে আপনি যদি আপনার ফ্যামিলিকে ভালোবাসেন, আপনার ওয়াইফকে, আপনার বাবা মাকে, আপনার সন্তানদের, তাহলে তাদের দিকে তাকিয়ে, তাদের স্বপ্নর দিকে তাকিয়ে ডিসিশন আপনাকে নিতে হবে, আর এফোর্ট আপনাকেই দিতে হবে। সঙ্গে আমরা থাকতে পারি, কত সহজে হবে সেটা আপনাকে আমরা গাইডেন্স দিতে পারি, বাট করতে আপনাকেই হবে। এবং কি আছে বায়োসাস বিজনেসটায়, কি আছে? আপনি শুধু যদি চান তাহলে একটা বড় জায়গা তৈরি করতে পারেন। ভেঙে পড়ার জায়গা নেই, কারণ ভেঙে পড়লে আপনাকে কেউ স্থান দেবে না। আমি একটা জিনিস দেখেছি, আমরা ছোটবেলায় অনেক পেন ইউজ করতাম, যে পেনের উপরে ভাঙা মূর্তি আমরা রাখতাম না, যদি ভেঙে যেত মানে আমরা ফেলে দিতাম। তো আপনি যদি আপনার লাইফে ভেঙে যান, তাহলে আপনাকেও আপনার ফ্যামিলি লাইফ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ভেঙে যাওয়ার জায়গা নেই, প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আপনাকে নিজেকে আপনার ফ্যামিলির জন্য গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ কিছু আজকে বলার নেই, টাইম অনেকটা পার হয়ে গেছে। আর সবাইকে একটা কথাই বলবো, ভেঙে পড়া যাবে না। যে যে পজিশনে আছেন না কেন, আজ থেকে ভাবুন, আজ থেকে একটা বিশেষ অপরচুনিটি পেয়েছি, যেখান থেকে আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি, যেখান থেকে আমার ফ্যামিলিকে আমি সেরা লাইফ দিতে পারি, যেখান থেকে আমি আমার মা বাবাকে সেরা জিনিসটা দিতে পারি, তাদের কাছে এনে দিতে পারি। তো আর বিশেষ কিছু বলার নেই। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, সবাই ভালো থাকবেন। বায়োসাস বিজনেস থেকে আপনি জীবনে আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। ওভার টু সোমনাথ স্যার। Thank you very much, sir. Happy Friendship Day to you and to your family, entire SBD family. क्योंकि अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वो हमारे फैमिली के बुजुर्ग नहीं है, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। क्योंकि अगर आज हम कुछ कह रहे हैं, अगर इस फैमिली का नाम ले रहे हैं, तो ये उनके सोच की वजह से है। क्योंकि हम एक परिवार है और हमें जीना अगर साथ में है तो परिवार के साथ जीना पड़ेगा, एकजुट होकर जीना पड़ेगा। ऐसा मौका उन्होंने हमें दिया है और हम कोशिश नहीं करते हैं, हम एकदम काबिलियत खुद की जितने भी हमारे अंदर है हम उसको प्रूव करते हैं कि हम बेस्ट हैं। और हम इंडिया में नहीं, हम वर्ल्ड की बेस्ट फैमिली है जिसका नाम है एसबीडी फैमिली। सो तहे दिल से मुझे सबसे থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস। সবাইকে অসংখ্য 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 ফ্রেন্ডশিপ ডের শুভ কামনা, শুভেচ্ছা। দারুণ একটা দিন এবং দারুণ কিছু আলোচনা আমরা এতক্ষণ ধরে সবাই শুনলাম। তবে একটাই ব্যাপার, যে এটা সবার জন্য যে কাজে লাগবে তা নয়, এটা তাদের জন্যই যারা সত্যি নিজেকে প্রমাণ করে দেখাতে চান, যারা সত্যি নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণ করে দেখাতে চান, যারা নিজের ফ্যামিলির কাছে, নিজের সোসাইটির কাছে, সারা দেশের কাছে, সারা বিশ্বের কাছে নিজেকে প্রমাণ করে দেখাতে চান। এই ইন্ডাস্ট্রি তাদের জন্য। আপনার এই জার্নিতে অনেক বন্ধু আসবে, অনেক বন্ধু হারিয়ে যাবে, অনেকে বেশ খানিকটা করে পথ চলবে, তারপরে তারা গায়েব হয়ে যাবে, অনেকে দিগ্ভ্রষ্ট হবে, অনেকে পথ হারিয়ে ফেলবে। এটাই বাস্তব। আমাদের লাইফে যেমন করে যা যা ঘটনা ঘটে, আপনার ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি জার্নিতেও একইভাবে আপনার সঙ্গে প্রচুর ঘটনা ঘটবে। কিন্তু একটাই ব্যাপার, আপনাকে টিকে থাকতে হবে, এবং আপনি তখনই টিকে থাকতে পারবেন যদি আপনি কেন কাজটা করবেন এটা নিজের কাছে পরিষ্কার করে জেনে নিতে পারেন। হ্যাঁ বন্ধু, নিজের কাছেই জানতে হবে যে কেন আপনি কাজটা করবেন। সোমনাথ স্যার আজকে দারুণ প্রেজেন্টেশন করেছেন, শুরু থেকে প্রচুর উদাহরণ দিয়েছেন, দারুণভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে আমরা আমাদের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে পারি এই লকডাউনের মধ্যে। কেউ এক্সট্রা ইনকাম করে, কেউ বা নিজের সংসারকে সামলে, তার সঙ্গে কেউ বা হয়তো ফুল টাইমার হিসাবে, কেউ হয়তো স্টুডেন্ট, সেই নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি তারপরেও আমরা নিজের ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে পারি। আমরা সবকিছু শুনলাম, কিন্তু বুঝেছি কজন? শুনি তো সবাই। কতজন ভেতর পর্যন্ত নিয়েছি, কতজনের কান থেকে ভেতর পর্যন্ত গেছে,
তার উপরেই নির্ভর করবে যে কতজন এই জার্নিতে একসঙ্গে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবেন। আমরা আছি, আমরা থাকবো। আপনাদের এইটুকুই বলে রাখি, আপনার যদি মনে হয় আপনার প্রয়োজন আছে, আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। কারণ আমরা শুধু কথা বলি না, আমরা কাজ করি। আমরা বড় বড় ডায়লগ দিই না, আমরা কাজ করি। আমরা দিখাওয়া করি না, আমরা কাজ করি। এবং আমরা যারা কাজ করতে চান তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে এগোতে পছন্দ করি। কারণ ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আরো অনেক 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 কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন করে এই সোসাইটিতে আমাদের অনেক কিছু ব্যাপার রয়েছে, সেই সোসাইটি থেকেই আমরা আসি এবং সেই আমরাই এই ইন্ডাস্ট্রির মতো করে নিজের মাইন্ডকে হয়তো সবাই চেঞ্জ করতে পারি না। শুধু এটাই বলবো, আপনাকে জিততে হবে, আপনি জিততে পারবেন, নিজের ওপর ভরসা রাখুন। আর সঙ্গে তো রয়েছে আমাদের শিবক্ষণ গুরুর রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনালি টেস্টেড এবং প্র্যাকটিক্যালি সত্যি কথা বলতে যে আমার ফ্যামিলিও আজকে খুব হ্যাপি এই বায়োসাস প্রোডাক্ট নিয়ে। বিজনেস তো পরের ব্যাপার। শুধু আমার ফ্যামিলি কেন, আমাদের এন্টায়ার অর্গানাইজেশনে প্রচুর 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 ফ্যামিলি আছে যারা সত্যি খুব আজকে হ্যাপি। শুধু এটাই বলবো, সুযোগ সবাই পায়, কাজে কিন্তু সবাই লাগাতে পারে না। আশা করি আপনি লাগিয়ে নিতে পারবেন, কারণ এরকম সুযোগ মনে হয় দ্বিতীয়বার আসবে না। আমি এই কথাটা সমস্ত যারা নতুন বন্ধুরা এখনো পর্যন্ত রয়েছেন এবং যারা অলরেডি আমরা আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছেন, আমি সবাইকে বলবো, এটা আমাদের মাসের লাস্ট উইক এবং গোয়া ট্রিপ কন্টেস্টের লাস্ট উইক। সমস্ত সিলভার অ্যান্ড অ্যাবভ অ্যাচিভার যারা এই উইকে মান্থলি কমিশন যাদের জেনারেট হবে, আমি তাদের সবাইকে বলবো যে নিজেদের 500 বিবি পারচেজ অবশ্যই কমপ্লিট করে নেবেন, খেয়াল রাখবেন সেটা। এবং যারা অলরেডি গোয়া কন্টেস্ট অ্যাচিভ করে গেছেন এবং অ্যাচিভ করতে যাচ্ছেন, তাদের সবাইকে বলবো একদম রেডি হয়ে নিন। খান্না স্যার আপনাদের জন্য ওয়েট করছে, দারুণ 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 নিউজ আমাদের সবার জন্য ওয়েট করছে। অগস্ট মাসে দারুণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আর বিশেষ কিছু নয়। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ওয়ান্স এগেন ফ্রেন্ডশিপের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি। শুধু বিশ্বাস রাখুন, আপনি পারবেন। আমরা সঙ্গে আছি, আমি সঙ্গে আছি আপনার। ডোন্ট ওয়ারি। ওভার টু সোমনাথ স্যার। थैंक यू वेरी मच सर। कहते हैं कि लोग बुरे नहीं होते हैं, लोग बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बुरे लोग अपने खुद से प्यार नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो भी लोग अभी तक हैं वो बहुत अपने आप से प्यार करते हैं। और उन्हीं के लिए मतलब 2-4 लाइनें कि आप खुद से अगर खुद को प्यार करते हो तो ये आपके लिए। हकीकत मोहब्बत की जुदाई होती है, हकीकत मोहब्बत की जुदाई होती है, कभी कभी प्यार में बेवफा होती है। हमारे तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो, दोस्त में कितनी सच्चाई में होती है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखना, खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। अपने दोस्तों को बदलो और अपने अंदर की इंसान को बदल लो। दोस्त आप बहुत बेहतर इंसान हो, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। और आपके सपने कभी अधूरे नहीं होने चाहिए। ये दुनिया छोड़ने से पहले आपके परिवार, आपके पूरे सपने देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। वेरी 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 हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आप अपने तरीके से लेफ्ट हो जाए सर। आज का मीटिंग अभी तक, आज का परिवार की तरफ से अभी खत्म करते हैं। थैंक यू।